Morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Good morning, sir. sir. Okay, so 1 मिनट वेट करते हैं. Good उसके morning, बाद sir. कंटिन्यू करते हैं. Morning. Okay, students. So session start करते हैं. So I am sharing my screen first. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Visible. See, I have told you that whenever we are working with any programming language, there are some concepts that you must know. And these are known as basic building block of every programming language, right? So here, and these concepts are, as we have already mentioned, these are variables, keywords, data types, operators, control flow structures, and we have array-like structure. For array-like structure, we have list and tuple here. We have dictionary, right, which are collection. Array-like structure means that kind of structures through which we should be able to store multiple values, and with the help of looping we can iterate through the values, right? But by using these concepts, when you have written your code, it may be the case whatever code you are writing, that code can be required multiple times, even in multiple program. Means we are writing code to define some functionality. कोई requirement है हमारी, उस requirement को fulfill करने के लिए we have written some code, right? And it may be the case same functionality may be required at multiple places in multiple program, right? तो हो सकता है को मेरे को it may be required many times at many places and in multiple programs, in many programs, right? So one option is that कि suppose एक मेरे पास कोई requirement थी, we have some requirement and we have written 50 lines of code to define that functionality जो भी मेरे को provide करनी थी, and suppose that functionality is required 5 times in one program. वहाँ पे ऑब्वियसली जब 5 टाइम्स है तो इनपुट वैल्यूज मेरी चेंज हो सकती हैं. सो वन ऑप्शन इज दैट कि जब भी वो मेरे को रिक्वायर्ड है फंक्शनैलिटी, फॉर सम फंक्शनैलिटी इज रिक्वायर्ड एट 5 प्लेसेस इन वन प्रोग्राम,
One option is that you will write those 50 lines of code 5 times. But in programming, we don't use that kind of approach where we are getting duplicacy of code. In every programming language, we avoid it. We try to avoid the duplicacy of the code. We try to reuse the same code. We try to find out such a way through which we should be able to use reusability feature, so that we can be able to reuse the code any number of times at any place in any program. Right? So how can you do that? How can you do that? So for that purpose, we use a very important concept of every programming language, and that concept is function. So basically, with the help of function, what we can do, whatever 50 lines of code, for example, we have written to define some functionality, we can give a name to it, right? We can give a name to it, and that name is can be called function name, right? And whenever that functionality will be required, we need not to write those 50 lines of code again and again whenever that functionality is required anywhere. We just need to specify the name of the function with some parameter value if we have passed any. कि अगर input values required हैं तो obviously क्या functionality आपने provide किया उसके basis पे processing होगी, right? Based on the functionality, processing will take place on the input values, right? And you will be getting output. Even in our computing world also, we use IPO cycle. कंप्यूटर में भी हम कंप्यूटिंग वर्ल्ड में वर्क करते हैं तो वी आर यूजिंग IPO cycle. What is IPO cycle? IPO cycle basically here if your input, we have input, we need to provide input, and processing will take place as per the functionality. जो हमारी requirement उस बेस पे processing होगी, and after that, after processing, we will be getting desired output. So similar is the case with function. So कोई भी functionality है, means what processing we want, what processing should take place depends on our requirement, and to define that we will be writing some lines of code. And if we are using concept of function, you can give a name to it. We can give a name to it, that will be function name. So when you are working with function, obviously it may be the case that you will pass some input values with that. Input values, you will pass input value, and what function you have provided, based on that processing will take place, and after processing you will be getting desired output. Right? So here this input in terms of function, this input is known as parameter, but before that सबसे पहले होता है कि होता क्या फंक्शन. ये तो हमने बात की कि यहाँ पे फंक्शन, बट तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप फंक्शन को, इसका रेलेवेंस तो मैंने बता दिया आपको. सो हाउ कैन यू डिफाइन ए फंक्शन? व्हाट इज अ फंक्शन? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ फंक्शन? It is a block of code which takes a particular input and can give you an output corresponding to what you input. Right. So basically function is used to represent some action. And why we are performing action? We are performing action so that we can complete a particular task in hand, right? And to specify this action, obviously we need to write our program, means we need to specify set of instructions to specify what we want to do with this functionality. So we can define function in different way. One definition can be like this. Function is a set of instruction. It is a set of instruction. Block of code. Obviously, you have used one word, block of code, and block of code, nothing. It's a set of instructions, and we are using set of instruction used to perform some action. So it is used to represent set of instruction used to perform some action. And why we are doing it? We are using some action. We are using some set of instruction used to perform some action so that we can be able to complete a particular task. So
Function is used to present inside of instruction, used to perform some action to complete a task in hand. Particular, we can say. So here, so obviously with function, when we are having set of instruction, it may be the case we may require some input value. In some cases, it may be the case we don't require any input value. Depending on requirement, it can be the case. So here, this input in terms of function, for input values, we use another word which is known as parameter. Right? So we passing input value to function. In other words, in programming generally we use this statement that we are passing parameter to the function, right? So this input value that we will pass to function on which some process will take place based on the functionality is known as parameters, right? So input values is known as parameter, and with any particular function you can pass zero parameter. You can pass none, one or more than one parameter. It depends on requirement. Sometimes it may be the case you are defining function where you need not to pass any parameter. You need not to pass any input value. Sometimes we need to pass one parameter, sometimes two, sometimes we need to pass some more parameter. Even sometimes we are passing this parameter in optional way. And you have seen that scenario with built-in functions. ऑलरेडी हम वर्क कर चुके हैं बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस पे वी हैव ऑलरेडी वर्क विद वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस based on number, string, list, tuple, dictionary and set, right? And then you have seen with some of the function we are passing one parameter, with some we are passing two parameter, with some we are passing three parameter. Even with some function these parameters are working in optional way where it is not necessary to pass all the parameter. Even we have some function, for some function it may be the case that we are not passing any parameter, right? So we have worked with these different types of function, but today we will see how can we create these kind of function by our own. So basically जो हम सेशन ले रहे हैं it is for user defined function. built in functions पे तो हम काम करते हैं, but जो built in function है it is requirement can be anything in real time. So it is not necessary that we have built-in functionality for every requirement of this world. Requirement of worlds are unlimited. We cannot predict all the requirements. So obviously, if we are having a very unique requirement with us, it may be the case we don't have any predefined functionality for that. So in that case, we need to define our own. So today we will see how can you define your own functions, and after that you can use, once you have defined, you can use this user defined function also like built-in function. So and see after function यहाँ पे तो define कर देंगे. Define करने के बाद whenever that function will be required, just a minute please. Anshuman Deepak, are you there? Anshuman Dipanshu, I think. Anshuman Dipanshu. Anshuman Dipanshu, are you in the class?
Uh, all the big data students, please raise your hand. जो hand symbol है ना, हाँ, please raise your hand. All the big data students. कितना hand raise हुआ? 6 मैम, 6. 6. हाँ, हो रहे हैं, मतलब कर रहे हैं स्टूडेंट. Seetal, are you in the class? Big data student Seetal, are you in the class? No. I think Anshuman Dipanshu is in the class. Anshu Dipanshu, please talk to Siddhi ma'am. You can call to Siddhi ma'am, right? Anshuman Dipanshu, you can make a WhatsApp call to Siddhi ma'am. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. अब अपना हैंड सिंबल डाउन कर लीजिए. यू कैन रिमूव योर हैंड सिंबल नाउ एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर सेशन नाउ. So here these input values are known as parameters. So once you have defined your function, you can store it at any location, and whenever you want to use it, you need to call this function. You need to invoke this function. And obviously, when you are invoking your function, you will specify your function name. Whatever this function name will be defined by you. Obviously, it is user-defined function with parameter value, and you will specify parameter value within parentheses. So here you will specify value of the parameter. If with some function you have passed 2 parameter, at the time of calling, you need to specify the value of the parameter. So for value of the parameter, we are using another word, which is known as arguments, right? So we use another term, argument, although we use these terms interchangeably, but there is a difference between these two terms, parameter and argument. What is argument? Argument, I think it's a value. It's a value passed to the parameter. You can say it's a values passed that you will pass to, that you will supply to the parameter of the function. At the time of function calling, at the time of function invoking. So when we are working with function, we will be using these terminology. So these are very simple terminology, but you must be familiar with these terminologies. Okay.
So this is about what is function and what is the meaning of some terms that we generally use with our function. Now, why we use function? क्या benefits है function को use करने के? Yes, students, वैसे तो जो मैंने अभी यहाँ पे explain किया है उस basis पे आप क्या कह सकते हो? What are the benefits of function? Code reusability. So code reusability. That is the most prominent feature of the function, right? Most important feature of the function. Reuse of code reusability. With the help of function, we will be able to use the same code any number of times at any place in any program. So that is one feature we will be getting with function, reusability of code. Another ऑप्शन इज सिंप्लीफिकेशन, मॉड्यूलैरिटी. इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मॉड्यूलैरिटी. यहाँ पे मैं मॉड्यूलैरिटी, ये जो मॉड्यूल वर्ड है ना, ये मैं जनरल साइंस में यूज कर रहा हूँ. अदरवाइज इन फंक्शन देयर इज अ स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ मॉड्यूल. तो थोड़ा बहुत हमने एक ओवरव्यू लिया था मॉड्यूल का हमारे ड्यूरिंग द इनिशियल सेशन. ऑल्दो डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल पैकेजेस. फंक्शन सेशन के बाद हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो मॉड्यूलैरिटी. What is modularity? Basically, with the help of function, it is possible that you can divide a large complex problem into some simple, smaller section of code, right? Known as function. या इनको मॉड्यूल भी कह सकते हैं. अगर मॉड्यूल कह रहे हैं तो this process is known as modularity. तो basically, modularity का पर्पस है simplification. Simplify करता है आपकी टास्क को. Once you have created your function, you can store it to central location, and whenever that functionality will be required, you can just call the function from that location. So in this case, you will be getting another benefit, that easier management, maintainability. It will be easy to manage your things. क्योंकि जो logically related function है, you can put it at one place. So easier management. एंड मेंटेनेंस. मेंटेन करना भी इजी रहता है हमारे अपने प्रोजेक्ट को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में कर रहे हैं. और ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा मॉड्यूल और पैकेजेस का रोल भी आ जाता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉड्यूल एंड पैकेजेस. मॉड्यूल पैकेज आता है दीज आर जस्ट कलेक्शंस ऑफ योर फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स. मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ अ फंक्शन, पैकेज इज कलेक्शन ऑफ योर मॉड्यूल्स. तो इसके बारे में भी हम फर्दर फंक्शन सेशन के बाद डिटेलिंग में बात करेंगे. सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शन. नाउ कम टू द way to define function. You can define function different ways depending on your requirement. So there are two ways of define function. अभी syntax तो हम देखेंगे, but क्या ways हो सकते हैं और किस requirement में आप क्या use कर सकते हैं, we are going to discuss that. So there are two ways of defining function. One way is that where you are focused just to perform some action. एक way हो सकता है where you are using function to perform some action. आपका focus है just to perform some action. And as a result of this action, it is not necessary that it will return any value. It may be the case it doesn't return value. It does not return any value. अगर मैं दूसरी लैंग्वेज से इसको कंपेयर करूँ ना तो बेसिकली दैट थिंग इज नोन एज वॉइड. तो एक तरह से वॉइड फंक्शन कैटेगरी होगी. वॉइड मीन्स नो रिटर्न वैल्यू. आल्दो अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये वैल्यू हम बोलते हैं कि डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, और जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा उसके लिए एक वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन यहाँ पाइथन में, नन. सो बेसिकली इट इज रिटर्निंग नन, and none is basically undefined value. So ये एक तरीका तो ये हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है कि if you are using this approach to define your function, actually you will be using this approach where you want to complete your functionality at that place only. आपने वहीं पे अपनी complete कर दी functionality. You don't want to use this further in some other different way. Suppose I am performing addition of two number and displaying the result of these two number. That's it with some message. तो अपने आप में वहीं पे complete हो गया. But दूसरी कैटेगरी हो सकती है where you are using
your function to compute something. To compute something, and as a result of this computation, it must return a single value. रिटर्न ये मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है फंक्शन. इट मस्ट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, लेकिन अगर मैं टपल के यूज कर दूं, टपल के बेसिस पर मल्टीपल भी रिटर्न हो सकती है. ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं. इट मस्ट रिटर्न ए सिंगल वैल्यू. मल्टीपल भी रिटर्न हो सकती है. और इस केस में जब आप फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर रहे हो, वेयर इट इज रिटर्निंग वैल्यू और वैल्यूज, यू विल यूज रिटर्न कीवर्ड टू रेफर दैट. सो इस केस में रिटर्न कीवर्ड भी यूज होता है फंक्शन डेफिनेशन में, जो भी हम देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है. रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड इन दिस. सो मींस अब सेकंड कैटेगरी क्या होगी कि सपोज आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, राइट, एंड आफ्टर एडिशन वी हैव रिटर्न अवर एक्सप्रेशन सच ए वे दैट इट इज रिटर्निंग ए वैल्यू. तो रिटर्निंग ए वैल्यू से क्या होगा कि कहीं पे भी हम यूज करेंगे वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसको हम होल्ड कर सकते हैं और अपने तरीके से कहीं पे भी किसी भी वे में उसको यूज कर सकते हैं. सो दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट. सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एक्चुअली इन व्हाट वे यू वांट टू डिफाइन योर फंक्शन. तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बट फॉर दैट पर्पस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट. तो अब आते हैं सिंटैक्स पार्ट पे. हाउ कैन यू डिफाइन फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग? सो कम टू द सिंटैक्स पार्ट नाउ. So to define your function, you will be using def keyword. कभी फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे def keyword. After that you will specify your function name. जो भी नेम आपको देना है अपने फंक्शन को, you can give that. You can give any name to it. It is user defined. And after that you will use parenthesis. And within this parenthesis you can pass 0 or more parameter. You can pass none, 1 or more than 1 parameter. तो ये parameter less भी हो सकता है और you can pass some parameters. So you pass parameters. So you can pass 0 or more parameters. After that you will put colon. और Python में जब भी हमने colon यूज किया, नेक्स्ट लाइन में 1 टैब का आपका स्पेस होना चाहिए, right? And here you will be writing your code. लेकिन कोड तो यहाँ पे आप हियर यू विल बी राइटिंग योर लाइंस ऑफ कोड टू डिफाइन योर फंक्शनैलिटी. तो जो भी जिस पर्पज के लिए आप फंक्शन को डिफाइन करने जाना है अकॉर्डिंगली आप कोड लिखेंगे. लाइंस ऑफ कोड टू डिफाइन फंक्शनैलिटी. देयर इज वन मोर ऑप्शनल केस हियर. ये ऑप्शनल है जो मैं बता रहा हूँ, 1 टैब का होना चाहिए स्पेस. देयर इज वन मोर ऑप्शनल थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट कैन हेल्प यू, व्हिच इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग. ये होता है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग. सी इट मे बी द केस यू आर डिफाइनिंग several hundred or several thousand of function, and when you are defining function, if you want to add some description with that, you can use documentation string for that. क्या पर्पज है इसका? बेसिकली अब सी यू कैन इमेजिन कि सपोज आपने यू हैव डिफाइंड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन, एंड इट मे बी द केस कि आफ्टर सम टाइम you means you have for some time you haven't worked with your code, and after some time you are coming back to work your code. सपोज 6 महीने बाद आप 6 महीने तक किसी और प्रोजेक्ट में लगा देंगे, 6 महीने बाद फिर से आप उस प्रोजेक्ट पे आए जहाँ पे आपने फंक्शन बनाए थे. तो इट मे बी द केस you will not be able to understand that what is the purpose of this function. उसके लिए you will go through the code of that function again and then you will understand, right? तो just to avoid this, it may be the case कि आप जब function define करें कुछ you can add some description with it. जैसे हम अपने अभी तक जो कोड लिखा था, वी आर यूजिंग कमेंट. कमेंट का पर्पज भी ये था, कमेंट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइन ऑफ कोड. लेकिन अगर मैं पूरे फंक्शन जो ये ब्लॉक ऑफ कोड बन रहा है फंक्शन में, उसके लिए भी एक कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ, फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग एंड इट इज ऑप्शनल. नहीं, अगर नहीं चाहते हैं आप तो यू कैन जस्ट अवॉइड इट आल्सो. जब कॉल करेंगे कॉलिंग पे यही देना आपको. और अगर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग आपको देखना, अगर आपने ऐड किया हुआ है कुछ क्या पर्पज है, तो यू कैन
there is a way of that also. So it's not it working. It is working like comment, means it is also used for description of the function, but actually it is not comment because it is considered by the interpreter. Comment is ignored by the interpreter, right? So now I'll take one example और वहीं पे हम ये दोनों कैटेगरी देखेंगे कि किस. तो पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम चीजों को, और फिर हम इन दोनों कैटेगरी में कैसे यूज कर सकते हैं. तो पहले मैं इस कैटेगरी को भी ले रहा हूँ और फंक्शन का सिंटैक्स पार्ट भी हम ले रहे हैं, सो दैट इट कैन बी क्लियर टू यू हाउ कैन वी डिफाइन आवर फंक्शन. सो सी, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? यस, इज देयर एनी डाउट? शुड आई प्रोसीड फर्दर? Yes, should I proceed? Okay. So it's time to switch over to our ideally. So I'm creating a script, and here basically we are going to write program for addition of two numbers. Simple सी functionality है, focus है हमारा syntax पे अभी. Addition of two numbers. Suppose इसके लिए मेरे को एक function बनाना है. So if you want to create a function, you can specify def. You can give any name to your function. Suppose I am giving a name add, and you can pass parameter as per your requirement. अगर मेरे को दो नंबर का एडिशन चाहिए तो I will pass two parameters. So I am passing two parameters. Suppose x, y. After that colon and see cursor. यहाँ पे तो ideally में तो automatically cursor वहाँ पे हो गया. अगर नहीं, अगर आप if you are writing your code in Notepad or any text editor, it will be here, so you just need to press tab from your keyboard and your cursor will be moved at that location where it should be. Now इस केस में मैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जो है डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ. इट इज जस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कोड, सो यू कैन ऐड सम line or lines just to specify for what purpose you are defining this particular function. It is defined by you. So suppose मैं कुछ यहाँ पे कुछ description ऐड कर देता हूँ. This function is used for addition of two numbers, suppose. So here we have written. अब आते हैं फंक्शनैलिटी पे, जिस पर्पज के लिए तो मेरे को करना है इन दोनों का एडिशन, और जो आउटपुट आएगा इनका उसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ रिजल्ट. उस फंक्शन को आई एम डिफाइनिंग बाय फॉलोइंग फर्स्ट अप्रोच, दिस अप्रोच, जहाँ पे मेरा फोकस जस्ट टू परफॉर्म सम एक्शन है. मैं क्या करूँगा, ये एडिशन मैंने किया और सिंपली आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग द आउटपुट विद सम मैसेज. तो यहाँ पे हम सिंपली बस प्रिंट करा दे रहे हैं, तो अपने आप में यहीं पे कंप्लीट हो गया ये प्रिंट. एंड हियर आई एम स्पेसिफाइंग द सपोज कुछ मैसेज, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज रिजल्ट. तो अपने आप में यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि आपने यहीं पे जो भी कैलकुलेट होकर वैल्यू है उसको एक मैसेज के साथ जस्ट प्रिंट, यू आर जस्ट प्रिंटिंग इट. तो ये फर्स्ट वाली अप्रोच को हमने यूज किया है. सो हियर तो यहाँ पे हमने अभी जस्ट डिफाइन किया है इसको, राइट. अब इसको कहीं पे भी यूज करना हो तो मैं इसको सेव करने के लिए डेफिनेशन को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और उसको मैं नेम दे देता हूँ सपोज फंक्शन एग्जाम्पल सपोज .py, और अपनी लोकेशन पे इसको स्टोर करते हैं. सो सी फंक्शन की डेफिनेशन मेरी सेव हो गई है. एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज दिस फंक्शन यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन. और जैसे आप करेंगे तो सी यहाँ पे आप बता रहे हैं कि यू हैव पास टू, यू नीड टू पास टू पैरामीटर. और आपने अगर इफ यू हैव एडेड सम डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग इट विल शो यू दैट आल्सो, राइट. तो यहाँ पे पता भी लग जाता है कि इसका पर्पज क्या है, राइट. सो हमें पूरा वी नीड नॉट टू गो थ्रू, केवल यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि इसका पर्पज क्या है. सो हियर यू नीड टू पास दीज टू वैल्यूज. इफ यू आर यूजिंग इट इट विल शो यू द आउटपुट, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज एज पर द वैल्यू. तो जो भी वैल्यू पास की अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग हुई, and after processing you are getting the output. You are, in this case you are just displaying it, right. So in this way you can create function. And if you have added some documentation string and if you want to see the text of documentation string, for that purpose you can use one
You can use one built-in attribute which is known as double underscore doc double underscore. तो फंक्शन नेम के साथ आप ये यूज कर देंगे. दिस इज बिल्ट इन एट्रीब्यूट. पाइथन में जब भी डबल अंडरस्कोर कोई नेम डबल अंडरस्कोर हो तो ये सब प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट है. तो दिस डबल अंडरस्कोर doc double underscore is used to display the text of documentation string if you have added. क्योंकि ऑप्शनल अगर नहीं किया तो तब तो कुछ भी नहीं दिखाएगा. तो सी अगर आपने दिए हियर वी हैव एडेड सो इट इज शोइंग यू दैट. तो हमें एकदम फंक्शन के इस अप्रोच से ही पता लग जाएगा. कोई भी मैंने अगर इफ आई हैव क्रिएटेड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन एंड इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन वी कैन जस्ट मेक यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट लाइक दिस बिकॉज यू हैव एडेड दिस. इवन ये अप्रोच हम हमारे बिल्ट इन जो फंक्शनैलिटी है ना उनके साथ भी है. सपोज वी नो दैट इंपोर्ट मैथ की मेक मैथ मॉड्यूल है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ ही हमें अवेलेबल होता है. And within this math module we have various function. If you want to see documentation string of it, अगर ऐड किया गया है होगा document string, so if you want to see that कि क्या मीनिंग है इन functions का तो वो ये भी आप देख सकते हैं. एक तो फंक्शन अगर आप देखते हो तो एक एट्रीब्यूट है dir डायरेक्टरी. अगर मैं यहाँ पे ये मॉड्यूल इंपोर्टेड मॉड्यूल का नेम पास करूँ तो इट विल शो यू ऑल द फंक्शंस कंटेंट बाय दिस. ये तो बिल्ट इन एट्रीब्यूट है ही, हर एक का अपना पर्पस है. देखो ये भी आ गया यहाँ पे. सो टाइम टू टाइम उनको भी हम रेफर करेंगे यहाँ पे. और हियर इट इज शोइंग ऑल द फंक्शंस कंटेंट बाय दिस मॉड्यूल. एंड इफ यू वांट टू सी द मीनिंग ऑफ इट, अब यहाँ से देखने से हमें नहीं पता लगता कि इसका पर्पस क्या है. इफ यू वांट टू सी ये चेक करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग ऐड की गई, क्या कोई डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग ऐड है, अगर है तो कैसे हम देख सकते हैं. तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट है बिल्ट इन के लिए. तो यूजर डिफाइंड के लिए तो बता ही दिया. बिल्ट इन के लिए एक एट्रीब्यूट है हेल्प एंड हियर यू जस्ट स्पेसिफाई योर मॉड्यूल नेम. तो इस मॉड्यूल की उस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन है उनकी डिटेल आपको दिखाएगा. सी हमने मैथ मॉड्यूल किया. इफ आई एम यूजिंग हेल्प मैथ सो देयर आर सो मेनी लाइन्स. सो इट इज शोइंग स्क्वीज टेक्स्ट. इसको क्लिक करेंगे तो इट इज शोइंग दैट. तो अगर हम अब यहाँ पे देखें सो सी इट इज शोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन. सो इट इज शोइंग inform about that math that it is a built-in module, right? The name of module is math. और मॉड्यूल के साथ भी डिस्क्रिप्शन ऐड की गई है इसी तरीके से. मॉड्यूल की बात हम बाद में करेंगे. तो वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन ऐड की गई है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऐड की है, इसलिए ये दिखा रहा है, राइट? और कम टू द फंक्शन ऑफ दिस. सी फंक्शन के साथ भी जो भी पैरामीटर है और उसका क्या मीनिंग है. तो ये जो टैक्स आ रहा है ना इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग. तो हमने कुछ फंक्शन यूज भी किए थे यहाँ पे. जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कुछ फंक्शन फ्लोर, तो ये दिखा रहा है आपका रिटर्न द फ्लोर ऑफ एक्स एज इंटीजर, राइट? दिस लार्जेस्ट इंटीजर विच शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू द स्पेसिफाइड वैल्यू, राइट? इस तरह और भी फंक्शंस हैं. एंड सम ऑफ द फंक्शन, सो इट इज कंटेनिंग वेरियस अर्थमेटिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आल्सो इन एडिशन टू योर नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शंस, राइट? तो इस तरह की अप्रोच हम अपने फंक्शन के साथ भी यूज कर रहे हैं. नाउ कम टू the another one. Now how can we define our function by using second approach? Suppose I want to use the same thing, but for this I will be using second approach. Means now I will define functionality यही है. I want to perform addition of two number, but I want to define this functionality in such a manner where it should return a value so that I can make use of that value further for some other purpose in the same program, right? So कैसे डिफाइन करेंगे? सी यही फंक्शनैलिटी, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ. तो एफ और इस बार नेम चेंज कर देते हैं, एड वन. फंक्शनैलिटी सेम प्रोवाइड करनी है तो सेम पैरामीटर रहेंगे. एंड अब इस बार मैं डॉक्यूमेंटेशन ऐड नहीं कर रहा क्योंकि अब आपको तो आइडिया तो है ही. सो हियर रिजल्ट इक्वल्स टू प्रोसेसिंग का कोड बताया किस तरह की प्रोसेसिंग हम एडिशन करना चाहते हैं. एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट कंप्लीटिंग this thing here itself. Instead of that I am just specifying that it is returning value. तो return value है तो उसके लिए हम return कीवर्ड यूज करेंगे. and here you will specify the name of your that variable which is holding the output value, right? डायरेक्टली भी return x plus y लिख सकते थे हम, तो वो भी ठीक था कि एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. but we are taking it first time, so that is why I have written in this way. so here you have specified this. अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा अभी तक. ओके सो यहाँ पे सेव हो गई डेफिनेशन आपकी एग्जीक्यूट करके. एंड अब ऐड यूज कर रहे हैं तो ऐड में क्या है, जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हैं यहाँ पे तो उसका आउटपुट दिखा रहे हैं यहाँ पे. बट ये जो ऐड वन, अगर ऐड वन यूज करो इट इज रिटर्निंग ए वैल्यू.
तो रिटर्निंग ए वैल्यू की क्या ही बेनिफिट हो सकते हैं कि मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पास की, फंक्शनैलिटी तो सेम है, लेकिन ये रिटर्न करेगा वैल्यू, रिटर्न करा तो इट मे बी द केस आई कैन होल्ड इट इन सम अदर वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ अपने से, कोई भी वेरिएबल नेम लेके, सो दैट वेरिएबल विल बी एबल टू होल्ड दैट वैल्यू। इवन यहाँ पे तो मैंने अपने से ही बता दें कि कैसे आउटपुट आए, लेकिन यहाँ पे मैं अपने तरीके से स्पेसिफाई कर सकता हूँ। आई एम स्पेसिफाइंग प्रिंट फंक्शन एंड आई एम स्पेसिफाइंग सपोज मैसेज लाइक दिस, रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल्स टू, जैसा चाहे हम अपने तरीके से, एंड हियर आई एम कॉलिंग द फंक्शन, सो आई एम कॉलिंग द फंक्शन, इट इज रिटर्निंग ए वैल्यू, तो जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आउटपुट दिखाएगा। सो basically it will return a value and we are using this value, we are concatenating this returned value, returned output value with this message। तो अब मैसेज यहाँ पे तो फिक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही है, दोबारा प्रिंट कॉल करके वहाँ पे अलग तरीके से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, राइट। सो दैट फंक्शन बेनिफिट वी आर गेटिंग, सो it depends on your requirement, in what way you want to define a particular functionality, whether you want to do something and complete it itself, or you are defining function such a way where you can make use of the return value further for some other purpose. So this is the meaning of this, right, that you can specify like this. Now with this we will have a look at our PPT, तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई फैक्ट्स अभी छूटा तो नहीं इस बेसिक्स का। So in Python, function is a named group of related statements that perform a specific task. Function help break our program into smaller and modular chunks. As our program grows larger and larger, function make it more organized and manageable. Furthermore, it avoids repetition and make code reusable. That is reusability, modularity, maintainability, right? Region management that we are getting, it is syntax part. Already we have explained it. So we can proceed further. यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाया गया greet name का, यहाँ पे ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग है which can span across the multiple line, even पैराग्राफ भी हो सकता है, सिंगल लाइन, इट इज अप टू यू। तभी इसीलिए मैंने ट्रिपल यूज किया था, वैसे तो डबल सिंगल भी कर सकते हैं अगर सिंगल है, क्योंकि स्ट्रिंग है, डॉक्यूमेंट इज स्ट्रिंग है। और यहाँ पे फंक्शनैलिटी की है, इट विल डिस्प्ले मैसेज विद हेलो एंड वॉट एवर वैल्यू विल बी पास्ड, क्योंकि ये पैरामीटर है। सो एट द टाइम ऑफ जो भी आर्गुमेंट आप पास करेंगे अकॉर्डिंगली, और गुड मॉर्निंग एक कॉन्कैटिनेट करें तो उसके अकॉर्डिंग मैसेज देगा। तो जब मैंने इसको कॉल किया है पास पॉल, सो ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी विल बी हेलो पॉल गुड मॉर्निंग। और जब फंक्शन को कॉल करें तब डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग का टेक्स्ट अगर देखना है तो उसके लिए आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको हम, द नेम ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज $_doc $_। सो वी हैव टेकन दिस आल्सो लाइक दिस, ग्रेट डॉग किया तो अगर आपने इफ यू हैव एडेड सम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग विद दिस, इट विल शो यू दैट। तो रिटर्न का भी हमने केस लिया हुआ है, रिटर्न वाला भी हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे भी है। तो एक काम करता हूँ मैं, पीपीटी का भी पार्ट बना देते हैं अपने इस प्रोग्राम को ना। तो एक काम करते हैं, जो प्रोग्राम है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लगा दें सो दैट यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंस। तो दोनों को डिफाइन भी किया हुआ है यहाँ पे, और इनका यूसेज भी दिखाया गया, आउटपुट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे नहीं किया, बस फंक्शन सिंपल एक एब्सोल्यूट, जस्ट एक वैसे इस तरह का फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास है, एबीएस एब्सोल्यूट, और यहाँ पे हमने अपने से बनाया। एब्सोल्यूट क्या होता है, एबीएस फंक्शन क्या करता है, वेदर यू आर पासिंग नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सिंपल सा लॉजिक यूज कर लिए यहाँ पे, मीन्स इफ द पैरामीटर वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट शुड रिटर्न नम, एल्स रिटर्न माइनस नम। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। जब कॉल करेंगे आप तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी चाहे कुछ भी करें। तो यहाँ पे रिटर्न आपने बताया कि दिस इज द केस, इट विल रिटर्न दिस वैल्यू, इफ otherwise it will return another value. In what value should be returned, you are specific, you can write down your expression accordingly. Same है, तो हम already we have taken this example.
Sir, can we use one function program in another program? Yes, we can. हमने बताया reusability, तो बिल्कुल कर सकते हैं. So here we have this. Now, when you are working with function, actually there is one more thing that you should be familiar: scope and lifetime of variable. See, now you have one thing. एक तो मैं here I am whenever I am working with any session, right? कोई भी session मैंने open किया. Whenever I am working with some session, ये इसको हम built-in namespace बोलते हैं. It may be the case you are defining some variable you are defining here, right? You are defining here. And it may be the case you are defining some function. And some variable you are defining within that also. And obviously you are defining, you are using some functionality here, right? You are defining some functionality here. So now there are two scenarios. Some variable you are defining within a function, some variable you are defining outside of the function. So basically based on that, actually we can have two types of scoping. और लाइफ टाइम क्या होता है, जैसे ही फंक्शन आपका कॉल होता है, जैसी वैल्यू रिटर्न होती है, आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तभी तक उसकी लाइफ होती है एग्जीक्यूशन तक. एग्जीक्यूशन होते ही आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जो मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, बेसिकली वेरिएबल क्या है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, राइट. और जैसे आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, उसके बाद ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसका मतलब आपकी मेमोरी फ्री हो जाती है. तो ये तो इसका लाइफ टाइम है. अब स्कोपिंग क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोपिंग एक्चुअली. When we are talking about scoping, there are two types of scoping: local scoping and global. उसी के बेस पे दो वेरिएबल है हमारे, local variable and global variable. Excuse me. Okay. So there may be two types of scoping here. So whenever we are working with variable, there may be two types of variable. There may be two types of variable. Maybe local variable. स्कोपिंग की हम बात करने जा रहे हैं. लोकल वेरिएबल, and global variable. What is local variable? Variable which is declared within the function so local variables will be declared within the function and it will be accessible So local variable, global. So local variable is that variable which is declared within a function and it will be accessible within that function only. Outside of the function, there is it will not be accessible. There is no meaning of it. So that is why we are calling it local variable. Means it will be local to that particular function where it is declared, right? तो इसका भी एग्जांपल भी लेंगे हम. तो ग्लोबल क्या होगा? तो ग्लोबल की अगर हम बात करें ग्लोबल वेरिएबल, अब तो इससे आइडिया हो गया होगा कि ग्लोबल क्या है. ग्लोबल मीन्स जो एक्सेसिबल है एवरीवेयर. सो इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड the function
and it will be accessible everywhere. एवरीवेयर का मतलब फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल होगा, किसी भी फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होगा. सर फंक्शन के अंदर प्रायोरिटी किसको मिलेगा फिर? हाँ, अभी एग्जांपल लेते हैं, उसी में सारे अभी केस भी बनाएंगे, फिर उसी में ये केस भी आएगा आपका जो जस्ट यू हैव आस्क्ड. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका एक केस क्रिएट करते हैं यहाँ पे. सो हियर सी आई एम डिफाइनिंग ए फंक्शन with name my_func. Within this function I am declaring one variable initializing with 10, and here we are defining functionality में we are just displaying message with some values of it. So इस वैल्यू को डिस्प्ले कराना, फंक्शनलिटी आई एम डिस्प्लेइंग दिस वैल्यू विद सम मैसेज, बेसिकली वैल्यू इनसाइड फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब ये हमने केवल जस्ट डिफाइन किया है अभी, ठीक है ना. जैसे मैं करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे सेव होगा, लेकिन उससे पहले मैंने कोड भी लिखा है यहाँ पे, कुछ और भी कोड लिखा, इस फंक्शन के बाहर आ गए. हियर आई हैव डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल एक्स इनिशियलाइजिंग विद 20. आफ्टर दैट आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन. तो अभी तो ये केवल हमने डिक्लेयर किया था, डिफाइन ही हुआ था, अब हम इसको यूज कर रहे हैं. तो जैसे मैं इसको यूज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा पॉइंटर इट विल लुक अवर पाइथन इंटरप्रेटर, व्हेनेवर यू आर कॉलिंग ए फंक्शन पाइथन इंटरप्रेटर विल लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ इट, एंड इफ इट विल गो देयर वेयर इट इज डिफाइंड, इफ डेफिनेशन इज फाउंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे इसको फंक्शन मिला, यहाँ पे गया, एक्स की वैल्यू ली, प्रिंट करेगा. तो क्या एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉलिंग ऑफ दिस फंक्शन क्या आउटपुट आएगा इसका? हाँ जी, क्या आउटपुट आएगा? जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? ये दिखाएगा वैल्यू इनसाइड फंक्शन x. अब x की वैल्यू 20 लेगा या 10 लेगा? 20. बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? वही क्वेश्चन आ गया जो अभी प्रायोरिटी था ना. बताइए, व्हाट डू यू थिंक? लॉजिकली सोचना इस बारे में. अगर फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन की डेफिनेशन में x की वैल्यू 10 है तो 10 लेना चाहिए. सी whenever you will be requiring something, कोई भी चीज आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक फॉर दैट थिंग विद इन योर हाउस, विद इन योर होम, राइट. सबसे पहले आप ये उसको चेक करेंगे कि घर पे है कि नहीं वो चीज़ अवेलेबल. अगर घर पे है तो ठीक है, वहीं पे रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो गई. इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन आई विल गो आउटसाइड, आई विल गो टू द आउटसाइड मार्केट एंड आई विल गेट इट फ्रॉम देयर, राइट. तो अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो अब बताओ क्या आना चाहिए? अब तो हिंट भी दे दिया आपको. 10 आना चाहिए. 10. तो वैल्यू इनसाइड फंक्शन क्या 10 या 20? 10. 10. तो 10. सी जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, जैसे फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और आपने लिखा वैल्यू इनसाइड फंक्शन x, तो पाइथन इंटरप्रेटर इसकी x की डेफिनेशन देखेगा. तो सबसे पहले तो ये यहीं पे देखेगा जिस फंक्शन का ये पार्ट है. सो अगर यहीं पे अवेलेबल है तो इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसको मिल गया यहीं पे, तो इट विल डिस्प्ले वैल्यू इनसाइड फंक्शन 10. तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा वैल्यू इनसाइड फंक्शन 10. तो यहाँ पे वैल्यू 10 है. अब यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर एक और लाइन लिखी है हमने, वैल्यू आउटसाइड फंक्शन x. अब यहाँ पे बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका? 20 आएगा सर. तो सी जैसा मैंने बताया ये x, अब ये इसके बाहर है, फंक्शन के बाहर है. फंक्शन के बाहर है तो इसका मतलब है कि, और हमें मैंने ये भी बताया कि जो लोकल है, लोकल तो एक्सेसिबल होगा नहीं इसके बाहर, तो इसकी जो डेफिनेशन है बाहर ही देखेगा, राइट. इसके बाहर ही देखेगा डेफिनेशन. तो बाहर यहाँ पे अवेलेबल है 20, तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा? इट विल बी 20. तो आउटपुट दिखाएगा वैल्यू आउटसाइड फंक्शन 20, राइट. तो अभी तो ये आउटपुट है इस कोड का. अब सपोज मैं कोई एक टास्क करता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कुछ, यहाँ पे लाइन है ही नहीं. अब बताओ क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का जो आपके सामने है? अभी क्या था? 20 आ सकता है. हाँ, जब तक ये लाइन थी मेरी, जब तक लाइन थी तो आउटपुट है 2 लाइन प्रिंट करेगा. पहले फंक्शन को पहले कॉलिंग हो रही है तो वैल्यू इनसाइड फंक्शन 10, वैल्यू आउटसाइड फंक्शन 20. लेकिन अब मैंने यहाँ पे बताया कि ओहो,
Now here we are considering suppose we don't have this. मैंने यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया इसको, बाकी कोड सेम है। हाँ, अब बताइए आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का? इनसाइड आएगा आउटसाइड कि बोथ एरर 20। आएगी, क्या रहेगा? 20. तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिक्लेयर है, फिर फंक्शन की कॉलिंग हुई तो वैल्यू इनसाइड फंक्शन एक्स। अब यहाँ पे तो ये अवेलेबल है नहीं, तो इट विल लुक फॉर द डेफिनेशन आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड वाला जो है दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। मेरा फंक्शन के किसी भी फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है। फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन जो ग्लोबल है वो तो होगा, तभी तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस ग्लोबल वर्ड हियर। तो ग्लोबल वेरिएबल कह रहे हैं हम इसको। तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे? वैल्यू इनसाइड फंक्शन 20 एंड वैल्यू आउटसाइड फंक्शन 20। 20. तो ये आउटपुट हो जाएगा अगर हम ये कर रहे हैं। अब सपोज मैंने क्या किया कि ये लाइन है और ये नहीं है यहाँ पे। अब सर इनसाइड में 10 लेगा, आउटसाइड में कुछ भी नहीं रह सकता है। हाँ बताओ कि आउटपुट क्या आएगा? क्या what do you think? तो सी पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन चलेगा। तो पहले इस लाइन पे आएगा ये, मतलब पहली लाइन में आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। फंक्शन को कॉलिंग करती है इसकी, पाइथन इंटरप्रेटर विल लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ इट एंड इफ इट इज देयर इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे है वैल्यू इनसाइड फंक्शन एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, मिल रही है इसको यहीं पे, तो इट विल डिस्प्ले वैल्यू इनसाइड फंक्शन 10, राइट। यहाँ पे तो ये आउटपुट देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा वैल्यू आउटसाइड फंक्शन एक्स, अब इसकी जो डेफिनेशन, अब ये जो फंक्शन के अंदर एक्स है वो तो इसके बाहर एक्सेस होगा नहीं, तो इसके बाहर तो एक्सेस होगा नहीं। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, पाइथन इंटरप्रेटर एक्स की डेफिनेशन को इसके बाहर देगा। इससे पहले कहीं डिक्लेयर है नहीं, तो ये डिक्लेयर ही नहीं है। डिक्लेयर नहीं है तो क्या होगा? ये देगा आपको नेम एरर, ये देगा नेम एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन पे एरर। सो आई होप यू आर गेटिंग कि कैसे स्कोपिंग काम करे, कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। यस सर। So now with this, we will proceed further. Sir, I have a doubt. Yes, tell me. सर अगर फंक्शन से हम पैरामीटर पास करते हैं और जो इनसाइड वेरिएबल है और जो पैरामीटर्स है अगर दोनों के नाम सेम हो, तो जावा में जैसे हम लोग दिस कीवर्ड यूज करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हम किस वाले को कॉल कर रहे हैं। पाइथन में ऐसा कुछ है क्या? हाँ, दिस पे आएंगे बाद में जब हम क्लास क्रिएट करेंगे। दिस क्या होता है सर? वो दिस कीवर्ड का पर्पस क्या होता है? व्हाई वी यूज दिस इन अदर लैंग्वेज? सर पॉइंट करने के लिए किसको? कि जैसे पैरामीटर पे मेरा वेरिएबल है ना, मेरे को उसको एक्सेस करना है। बेसिकली दिस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई योर करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज होता है दिस, ठीक है। यस। और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? सब्जेक्ट का, क्लास का, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट से पहले क्लास डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एंड वी हैव स्पेसिफाइड दैट वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज रिक्वायर्ड। सो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस पे हम काम करें उसको रेफर करने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया जाता है बाकी लैंग्वेज में, ठीक है। तो हियर आल्सो वी विल लुक एट इट। दिस कीवर्ड नहीं है सच, बट दिस जैसा बिल्कुल है। तो जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, देन वी विल टेक दिस। अभी तो यहाँ पे क्लास का रेफरेंस हम ले ही नहीं रहे, राइट। यस सर। और फिर क्लास आएंगे तो क्लास के अंदर भी जो फंक्शन है वो कैसे करते हैं, क्या थोड़ा वो डिफरेंस आएगा, उस समय हम देखेंगे। इसीलिए पाइथन में ना दो वर्ड यूज करते हैं। अभी तो हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं इन दो वर्ड्स को, दैट इज फंक्शन एंड मेथड। बट पाइथन अगर इफ वी टेक दिस टर्म्स इन पाइथनिक मैनर, actually there is a difference between these two. There is a difference between function and method. अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं ना डेफ के थ्रू, these are functions. इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जो नेम यूज करेंगे हम फंक्शन। एंड व्हेन वी विल बी डिफाइनिंग दिस फंक्शन विद इन क्लास, जब हम अपनी क्लास क्रिएट करेंगे उस फंक्शन को हम बोलते हैं मेथड। तो उसके लिए मेथड वर्ड यूज करते हैं।
जनरली हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट पाइथन में स्पेसिफिक मीनिंग है, दोनों में डिफरेंस है। तो वहीं पे ये दिस वाला जो बोल रहे हैं ना, ये डिफरेंस है, तो उस समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट विल बी द राइट टाइम टू टेक दैट पार्ट। ठीक है, यस सर। सो हियर so basically when we are specifying type of function, तो कई तरह के हमारे फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर फंक्शन की मैं ओवरऑल जो चीजें हमने कुछ फंक्शन पहले भी यूज किए हैं, अब आपको एक ये भी आइडिया होगा कि हाउ कैन वी डिफाइन आवर ओन फंक्शंस। तो अगर हम इसका कैटेगराइजेशन देखें ना फंक्शंस का पाइथन में, एक समरी के लिए थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए। So basically there are two types of function, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। एक हमारे एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम अपने से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी जस्ट हमने किया है, और बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। इसको बेसिकली हम बोलेंगे कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारी ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच इज कंटेनिंग प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी। एंड दिस प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में दो तरीकों से। वी कैन डिफाइन इट इन टू वेज। One option is that you can specify built-in functions. Built-in functions उनको बोला है जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, जैसे प्रिंट, राइट? प्रिंट है, यू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली। उसके लिए मेरे को किसी मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शन ही है। और मैंने आपको बताया कि अगर बिल्ट इन फंक्शंस को आपको देखना है तो क्या यूज करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट। उसके लिए हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने बताया कि dir और डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन, अगर उनको हमें देखना ही है तो डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन डबल अंडरस्कोर इसको करेंगे तो इट विल शो यू दैट। पहले तो ये सब तो क्लासेज है और एक्सेप्शन से रिलेटेड क्लासेज है, डोंट वरी अबाउट दिस। एक्सेप्शन हैंडलिंग की जब हम बात करेंगे तब इन क्लासेस का यूज करेंगे। बाकी ये सब प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट है, हर एक अपने की मीनिंग है, जिसमें डॉक आपने यूज भी किया है। सो ये सब वो फंक्शन है, यहाँ से फंक्शन हुए। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। इन फंक्शंस को आप when you want to work with this function you need not to import any module, डायरेक्टली यूज कर लेंगे आप। और किया भी हमने, इनपुट है id int print power और तो टाइम टू टाइम हम करते जा रहे हैं, कई यूज कर चुके हैं और कुछ करते रहेंगे फर्दर। तो एक कैटेगरी तो ये हुई बिल्ट इन फंक्शंस की। एक है कि जहाँ पे आपको मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किए गए मॉड्यूल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो दूसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं कि फंक्शंस की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, कि आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड विद इन दैट, एक बार मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ, विद इन दैट यू आर गेटिंग सम बिल्ट इन फंक्शन, फिर उन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। जैसे SQRT, अगर SQRT इट इज अवेलेबल विद इन मैथ मॉड्यूल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल and then by writing math.sqrt you can use it, right? So basically functions की जब हम बात कर रहे हैं तो we have this kind of categorization of your own functions here. ये क्या होते हैं फंक्शन, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एडवांटेज वगैरह भी सब हम देख चुके हैं कि क्या एडवांटेज है। यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो सिंपल वैसा ही फंक्शन है, बस यहाँ पे ये कि यू कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द, इनकी वैल्यू यूजर से भी ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है दो पैरामीटर है, यहाँ पे सम किया गया है, तो मैंने क्या किया, वैल्यू ले ली यूजर से और num1 num2 के अंदर स्टोर किया और num1 num2 का एज ए पैरामीटर की जगह यहाँ पे आर्गुमेंट की तरह एज आर्गुमेंट पास कर दिया। तो इनके थ्रू जो वैल्यू इसको मिलेगी अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने यूजर से सप्लाई कर दी। तो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे पहले इनकी वैल्यू की डिमांड करेगा और फिर अकॉर्डिंग फिर फंक्शन को कॉल किया गया विद दिस मैसेज। तो एज पर द फंक्शन फंक्शनैलिटी इट विल गिव द आउटपुट।
So this is about function. अभी हमने define किया कि function होता क्या है, what are the ways to define function, right? How can we define function, what is the role of documentation string in that, right? Even when you are declaring variable within function or outside of function, how it can change the, how it can be used to define the scoping. और लाइफ टाइम क्या है, जैसे ही फंक्शन आपका रिटर्न करता है ना लास्ट वैल्यू, द स्कोपिंग दिस लाइफ ऑफ वेरिएबल will be destroyed, means that variable will be destroyed, उसकी लाइफ वहीं तक है, उसका लाइफ स्पैन वहीं तक, लास्ट रिटर्न वैल्यू तक. So now next we will be discussing about some more things related to this function. अभी तक हमने केवल function की बात की है, what is function, how can we define it, right? And we have pass parameter. Now next we will be defining how can we pass parameter differently as per our requirement. जैसे मैंने बताया कि we can define any number of parameter with function. We can pass zero parameter, means कोई parameter ही pass ना करें. We can pass one parameter, two parameter. Even sometime it is also the case we can specify our parameter in optional way. How can we do that? How can we do that? कहाँ पे हम अभी मैंडेटरी है, कैसे इसको ऑप्शनल कर सकते हैं, कैसे हम मैंडेटरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट. वी विल बी टेकिंग दिस पार्ट, मीन्स हाउ कैन वी नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट वेज ऑफ पासिंग पैरामीटर्स विद योर फंक्शन, बट आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक. तो नाउ वी विल टेक ए ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक. ठीक है, इट्स 11:22, सो वी विल कंटिन्यू अ सेशन एट 11:35. 11:35 पे कंटिन्यू करते हैं सेशन को. ठीक है, टिल देन यू कैन हैव अ ब्रेक. थैंक यू सर. डब्बे में भर दीजिए. Hello, am I audible? Yes.
एक मिनट में पूछ लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम बैक। विवेक, आर यू देयर इन द क्लास? विवेक फ्रॉम DBDA, आर यू देयर इन द क्लास? आप क्लास में हैं विवेक? Vivek, if you are in the class, please raise your hand. Ma'am said hand. Okay, students, so continue करते हैं अपने सेशन से। So I'm sharing my screen. So now we will see the different ways of passing parameter with our function. See, right now we have defined these functions, but actually with these functions, whatever parameter we are passing, these are mandatory parameter. Means if I'm calling any function, suppose यहाँ पे मैं कोई भी function call करूँ, add को मैंने call किया, if I'm passing 2 parameter, that is fine, क्योंकि दिखा भी रहा है कि 2 parameter आपको pass करने हैं, तो it is working fine. But if I'm passing only 1 parameter, or if I'm not passing any parameter, obviously it will give you error, right? It will give, if you are passing only 1 parameter, it's showing add missing 1 required positional argument y, कि y की वैल्यू आपने नहीं दी है यहाँ पे as per this, और नहीं है तो यहाँ पे इसने दिखा दिया add type error missing 2 required positional argument x and y. So how can you make your function flexible, where even if you are not passing the value for some of the parameter, in that case also it should work. So how can you do that? So for that purpose we use different ways of passing parameters. So now next we are going to discuss about that. So next we are going to discuss about different ways to pass parameters, or sometimes maybe arguments also at the time of calling. Pass parameters, arguments to functions. So there are 3 ways basically. These are, first is default argument, second is keyword argument, and third one is वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट. इसको हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, मीन्स कितने भी आर्गुमेंट हम डिफाइन करें. आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, in other words we can call it variable length of arguments. So सबसे पहले आते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट पे. So if you want to use your function in flexible manner, it may be the case you can pass some default value with some parameter. For example, suppose अगर मैंने एक function बनाया है यहाँ पे def, and suppose यहाँ पे मैं PPT से ही वाला ये एग्जांपल यहाँ पे यूज कर लेते हैं. ठीक है. So उसी तरह का फंक्शन बना देते हैं. सपोज एक फंक्शन मैंने बनाया ग्रीट,
and here I am passing two parameter, name and MSG, और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर को मेरे को डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है कि यू कैन स्पेसिफाई सम डिफॉल्ट वैल्यू विद सम पैरामीटर। सपोज इसके साथ मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, कोई भी वैल्यू, सपोज हियर आई हैव स्पेसिफाई गुड मॉर्निंग, पहले वाले के साथ नहीं की, ठीक है। उसके बाद कॉलन, वी आर क्रिएटिंग दिस, स्पेस ले लेते हैं सो दैट कैन लुक सो हियर। फिर कोई फंक्शनैलिटी, कुछ भी फंक्शनैलिटी, सपोज मैं कुछ मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सपोज आई एम प्रिंटिंग लाइक हेलो and concatenating it with the variable value of name, and after that I'm concatenating it with value of second parameter with some space, कोमा के साथ हम इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। MSC तो सिंपल ये इस तरह से मैसेज देगा। तो अगर मैं इसको अब चेक करूं, इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, तो अगर मैं दो पैरामीटर पास किए और दोनों की वैल्यू दे रहा हूं, यू नीड टू पास टू पैरामीटर, और दोनों की वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। सपोज हियर आई एम स्पेसिफाइंग suppose I am passing this, दोनों पैरामीटर की वैल्यू दे दी, नेम पैरामीटर की वैल्यू आई पास निमेश, एंड फॉर द सेकंड पैरामीटर आई हैव स्पेसिफाइड दिस। अगर ये लेटेस्ट वैल्यू दी है तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी इस वैल्यू से, जो लेटेस्ट है उसी को कंसीडर करेगा। सो इट विल डिस्प्ले हेलो निमेश हाउ आर यू। बट इवन इन दिस केस इफ आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू फॉर सेकंड पैरामीटर, पहले क्या था, दोनों मैंडेटरी थे ऐड के केस में, लेकिन इस केस में अगर मैं सेकंड वैल्यू पास भी नहीं करता तो भी ये वर्क करेगा, because if you are not passing the value for second parameter it will take default one because you have created it default parameter, right? तो default argument की वैल्यू उसको मिल जाएगी, so here it will be working। तो इस तरह से आपने इसको फ्लेक्सिबल बना दिया है, राइट। हाँ, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पास ना करूं, what do you think, it will work, it will be working or what? एरर देगा, एरर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं बना है, पहले वाला मैंडेटरी ही रखा है हमने, पहले वाले को मैंडेटरी रखा। अगर मैं इसको भी डिफॉल्ट बना देता तब फिर नहीं भी करते तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता, लेकिन अभी इस केस में हमने पहले वाला मैंडेटरी है, दूसरे को डिफॉल्ट बनाया, राइट। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी। अभी इस केस में तो एरर देगा क्योंकि पहले वाले पैरामीटर की तो वैल्यू चाहिए क्योंकि मैंडेटरी है, राइट। अगर उसको भी डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे आप तो फिर काम करेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन अब इस अप्रोच में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब आप ये डिफाइन कर रहे हो ना इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरह के पैरामीटर है। एक पैरामीटर जिसके लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपने स्पेसिफाई नहीं किया, अनदर पैरामीटर जिसके लिए आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई किया। तो इसको आई कैन कॉल इट नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर एंड आई कैन कॉल इट डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इफ यू आर डिफाइनिंग सच टाइप ऑफ फंक्शन विच इज कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, नॉन डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट, so first of all you should specify non default parameter and after that you should define default parameter। ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स नहीं कर सकते। अगर रिवर्स आप करेंगे ना, सपोज आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपने यू हैव स्पेसिफाइड लाइक दिस, दोनों कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने इस तरह से किया, मीन्स पहले आपने डिफॉल्ट को डिफाइन किया फिर नॉन डिफॉल्ट, इट विल बी रॉन्ग। अगर आप अब देखो, इसको मैं सेव करना चाहूँ, उस डेफिनेशन को जो चेंज किया है मैंने, तो सी ये सेव ही नहीं हुआ, और मैसेज देखो, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट विच इज नॉट परमिसिबल, ये एरर है। तो ऐसा नहीं हो सकता, नॉन डिफॉल्ट आपका फॉलो नहीं करेगा बल्कि डिफॉल्ट फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसको हम रखेगा दो तरह का, और जितने भी डिफॉल्ट होंगे उसके बाद, तो पहले अगर आपके मल्टीपल हैं नॉन डिफॉल्ट तो उनको पहले डिफाइन करो सबको और फिर डिफॉल्ट बोलो। सो हियर
ये सब नहीं कर दिया तो इट विल बी वर्किंग। तो ये सेव होगी डेफिनेशन, ठीक है, वो काम भी करेगा जैसे हमने किया। सो दैट इज वन केस। अब आते हैं सेकंड केस पे, कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट, सी जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो व्हेन यू आर कॉलिंग इट, कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या है कि व्हेन वी आर कॉलिंग इट, अगर ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, ऑब्वियसली दोनों के लिए वैल्यू दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी वर्किंग फाइन। इवन आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे पता है 2 पैरामीटर है हमारे, तो आई कैन स्पेसिफाई लाइक दिस आल्सो, नेम, मतलब पैरामीटर का नेम लिखिए उसकी वैल्यू, इसलिए इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बोला गया कि एक तरीके से ये जो पैरामीटर की तरह काम हो गया और फिर उसकी वैल्यू उस पर, तो कुछ भी वैल्यू जो भी आप लिखना चाहें। सपोज यहाँ पे हियर आई हैव रिटन कोई मैसेज पास कर दिया हमने इसी फंक्शन में, ये मेरा फंक्शन एंटर वी आर पासिंग दिस। सो तो यहाँ पे 2 कीवर्ड आर्गुमेंट हो गए, ये भी कीवर्ड और ये भी कीवर्ड, तो ऑब्वियसली इस केस में भी ये मेरा प्रॉपर्ली काम करेगा। इवन इस केस में अगर मैं पोजीशन भी इनकी चेंज कर दूं ना, अगर कीवर्ड आर्गुमेंट है, अगर मैं इनकी पोजीशन भी चेंज कर दूं तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि वर्क तो फंक्शनैलिटी के थ्रू करेगा। यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली बता दिया है कि नेम की वैल्यू मयूर है, मैसेज MSG की वैल्यू ही है, तो फंक्शनैलिटी इसी तरीके से होगा, आउटपुट आपका सेम होगा, कोई एरर नहीं देगा ये, क्योंकि आपने कीवर्ड आर्गुमेंट है, सी आउटपुट दोनों में सेम है। तो अगर आपने ऐसे किया है, इवन पोजीशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, यहाँ पे पोजीशन प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दिस अप्रोच आल्सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब इसमें कैसे केयरफुल होना होगा, सपोज इन दिस केस इफ यू आर स्पेसिफाइंग, इसमें इनको हम बोल रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा हो, एक कीवर्ड हो और कोई नॉन कीवर्ड हो, मींस सपोज मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया चीजों को, तो अब यहाँ पे 2 तरह के आर्गुमेंट हो गए। कीवर्ड ये है नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके लिए मैंने कोई की नहीं बताई, मतलब जिस तरह से ऐसे कन्वेंशन यूज किए ना, पैरामीटर के लिख के उसको वैल्यू दी है, इसको हम बोलेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट और उसको बोलेंगे नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। तो अगर नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट 2 तरीके से आप डिफाइन करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्पेसिफाई नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट or arguments, after that you will specify your keyword argument. If you are using this approach, that is fine, it will be working, output same होगा, but you cannot use the opposite way of it, means ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले कीवर्ड आर्गुमेंट बताया, कि ऐसा नहीं करेंगे कि हमने नेम इक्वल्स टू ये कीवर्ड ले लिया और इसको मैंने नॉन कीवर्ड बना, नॉन कीवर्ड बाद में कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का ट्राई करोगे, इट विल गिव यू एरर। Destroying positional argument follows keyword argument, which is not possible, which is not permissible, right? तो इस अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल रही है, लेकिन किस तरीके से करना है इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड आर्गुमेंट जो है, जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, दिस कीवर्ड आर्गुमेंट शुड फॉलो नॉन कीवर्ड, मतलब नॉन कीवर्ड पहले आएंगे फिर कीवर्ड आएंगे। अगर आप कीवर्ड को पहले कर दोगे, नॉन कीवर्ड बाद में आएंगे, इट विल गिव यू एरर, एज यू कैन सी। तो इसका ध्यान रखना है इस बार सेकेंड अप्रोच में। So that is the case and come to, तो ये हो गया मेरा कीवर्ड आर्गुमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, लेकिन उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि कैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट के केस में नॉन डिफॉल्ट पहले, उसके बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड में पहले नॉन कीवर्ड और फिर कीवर्ड। अभी लेकिन अभी भी क्या है कि यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये इस तरीके से कि हमने काम कर रहा है, बट अगर यहाँ पे अभी मैं थर्ड पैरामीटर ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई थर्ड पैरामीटर स्पेसिफाई कर दूं, वहाँ पे भी कोई वैल्यू दे दूं, कुछ भी वैल्यू हम दे दें यहाँ पे, सो विल इट बी वर्किंग और व्हाट, अभी काम करेगा या नहीं? हाँ जी, और फंक्शन ये है, करना तो नहीं चाहिए। हाँ नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने डिफाइन किया
I have defined only 2 और यहाँ पे हम passing 2 3, आर्गुमेंट थे हमारे so पास। obviously it will give you error। ये तो recognition या define ही नहीं है यहाँ पे, जब define ही नहीं है तो कैसे हम use करेंगे, तो obviously it will give you error, syntax error। Positional argument follows keyword। अच्छा ये तो दूसरे वाली error है, ये तो यहाँ पे हाँ वही आ गया ना केस, सी केस तो यही आ गया। अभी तो वो वाला वॉलेट हो गया जो आपने बताया था, मैसेज उसके अकॉर्डिंग आया। हाँ अगर मैं इनको सबको कीवर्ड भी बना देना तो चलो, इनका तो कीवर्ड मिल गया आपको, तो एक तरह से यहाँ भी वही एरर बन गई कि कीवर्ड आप पहले डिफाइन कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ सबको। अब ये तो काम, ये इन दोनों के लिए तो काम करेगा, तो 2 पैरामीटर दिए हैं, दोनों की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 पास कर दूं, 3 पैरामीटर किए तो ऑब्वियसली इट विल गिव एरर। यहाँ पे तो एरर उसी वजह से आई कि पोजिशनल में पहले कीवर्ड आ गया, कोई नॉन, तो वो वैसे भी नहीं है पॉसिबल। लेकिन अब यहाँ पे उस वाले केस को हटा दे तो इट इज शोइंग ग्रेड टेक्स फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, तो ऑब्वियसली it will give error। So how can we create, now next we will see how can we define our method in such a way so that it can take any number of arguments, कितने भी वैल्यू पास करें, in every case should work। Means I want to define such type of function, if you are not passing any value it should work। If I am passing 1 value or 2 values, 1 parameter value, 2 parameter value, 3 parameter, any number of parameter value I am passing, in every case it should work, right? So how can you define that? तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अब मेरे को एक ऐसा एडिशन ऑपरेशन से रिलेटेड फंक्शन बनाना है कि जिसमें मैं अगर कोई वैल्यू पास ना करूं तो 0 दिखाए, 1 पास करे तो उसी वैल्यू को दिखा दे, 2 करे इनका एडिशन, 3 करे 3 वैल्यू का एडिशन, 5, 5, 6 जितनी भी वैल्यू करे उनका एडिशन दिखाए, सिंपली, right? So how can we define such type of function which can take any number of parameter value? So which can take any number of parameter, अभी तो define कर रहे हैं तो parameter बोलते हैं, which can take any number of parameter। So if you want to define such type of method which can take any number of parameter, suppose एक मैं ऐसे तरह का method बना रहा हूँ, उसको name दे देता हूँ मैं add2, you can give any name, it is user defined। And if you want to define such type of function which can take any number of parameter value, for that purpose you will be using star और कोई भी वेरिएबल नेम दे दो। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल लेंथ पैरामीटर ले सकता है कि यहाँ पे आप 0, यू कैन पास 0 और मोर पैरामीटर्स, इन एवरी केस इट विल वर्क। अब ये फंक्शनलिटी कैसे काम करेगी, किस पर्पज के लिए हम ऐसा बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट भी ऐसी होनी चाहिए। तो मैं क्या किया, एडिशन के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग मैं कोड लिख रहा हूँ। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया सम, इसको इनिशियली 0 कर दिया, फिर अब मेरे को मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करना है, तो मल्टीपल वैल्यूज पे काम करना है तो हमें लूप चाहिए। तो मैंने क्या किया, फॉर आई, अभी मैं लिख लेता हूँ कोड, देन आई विल एक्सप्लेन। सम करना है तो जितनी भी वैल्यू आती है ना वो सम होती रहे इसी के साथ। और फाइनली आई वांट टू प्रिंट द सम, आई वांट टू प्रिंट द टोटल सम। So see what I have done। तो अभी कि ये स्टार करती जैसे आप लिखेंगे तो इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यू, राइट। सो हियर, और फिर फंक्शनलिटी की जितनी भी वैल्यू आ रही है, जो भी पास के, वो इटरेट करेंगी और सम में ऐड होती चली जाएंगे। और फाइनली इस लूप के बारे मैंने, बट फंक्शन का ही पार्ट है, तो आई एम प्रिंटिंग दैट सम। सो सी नाउ वी विल चेक। सो हियर आई एम कॉलिंग इट add2। See, I am not passing any value. If you are not, oh sorry, I am not passing any value. If you are not passing, it is working. It is giving 0, right? If you are passing one value, it is working. It is reading the value itself. 12 plus 0 हो जाएगा। If I am passing some more values, value pass करें, in average it will क्या दिखा है इसने? Oh, name गलत हो गया। add2. So in average it will work। See, इस केस में इन सब का इसने दिखा दिया, तो यू कैन पास एनी नंबर ऑफ वैल्यू, इन एवरी केस इट विल बी वर्किंग। कितनी भी वैल्यू पास करें, इन एवरी केस इट विल बी वर्किंग। सो हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली? सो बेसिकली व्हाट हैपन व्हेन यू आर यूजिंग दिस सिनेरियो ना, एक्चुअली दिस थिंग व्हाटएवर यू आर रिटर्न, इट इज वर्किंग एज ए टपल। और अगर टपल है तो व्हेन वी हैव रिटर्न दिस, सो बेसिकली इट मींस दैट यू आर इटरेटिंग थ्रू द वैल्यूज ऑफ टपल। तो टपल की वैल्यू आएंगी 1 by 1, उनको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सम करा दिया।
एंड वी आर गेटिंग इट। अगर इसको चेक भी करना ना हमें, अगर मैं चेक भी करूं प्रिंट, तो इस तरह से बैकग्राउंड में काम कर रहा है ये, चेक भी कर सकते हैं। नोट टाइप ऑफ सम, टाइप ऑफ नम जो पास कर रहे हैं। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू, कोई भी पैरामीटर पास कर, सपोज इसी को कर लेते हैं। सो सी आउटपुट तो दिखाया, इसका सम दिखा दिया सारी वैल्यूज का, और ये दिखाया ये जो नम का टाइप देखा हमने, नम जो पास किए ना, दैट इज ऑफ टपल टाइप एक्चुअली। सो इट इज जस्ट फॉर योर आइडिया। सो इन दिस वे यू कैन स्पेसिफाई सच अ फंक्शन आल्सो which can take any number of values। उसके लिए कन्वेंशन यूज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ पैरामीटर, हम वैल्यू पास कर रहे हैं। सो हियर वी हैव दिस। अच्छा, इसके साथ ही एक और सिनेरियो, एक और चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ये तो है मेरा, जब हम टपल है, लिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को डिक्शनरी के फॉर्म में अगर चीजों को लेना हो तो if I want to take the things terms of dictionary, तो उसके लिए देखो एक कन्वेंशन और होती है, कन्वेंशन की वजह से मैं इसको ले रहा हूँ। एक और कन्वेंशन जो आपको इंटेलिजेंस में देखने को मिल सकती है जब हम फर्दर कुछ और फंक्शन पे डील करेंगे। अगर आपको आउटपुट डिक्शनरी की तरह चाहिए तो मैं कुछ एक डिफाइन करता हूँ, सपोज कोई भी नेम दे देता हूँ मैं अपने फंक्शन को। तो एक कन्वेंशन ऐसी भी यूज करते हैं, डबल स्टार, और कोई भी वेरिएबल ले लो आप, सपोज नाम ही ले लेता हूं मैं। तो इस केस में क्या करेगा ये हम यूज करते हैं इफ यू आर पासिंग एनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब एक तरह से डिक्शनरी की जब बात करते हैं तो डिक्शनरी है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये इस तरह का है जो वेरिएबल लेंथ ऑफ वैल्यू ले सकता है, जो पेयर के फॉर्म में है, कीवर्ड के फॉर्म में है, की पेयर के फॉर्म में है, तो वो, और वो भी वेरिएबल। तो डबल स्टार डिक्शनरी को लगे, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना वो भी आपका डिक्शनरी टाइप होगा। सी आई एम जस्ट जो भी है उसको मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन हैव आइडिया अबाउट इट। सपोज अब मैंने इसको डिफाइन किया, एग्जीक्यूट किया, अब इसको कॉल करते हैं KW1। तो अब इस कन्वेंशन में जब आप करेंगे तो डबल स्टार का मतलब आप पेयर के फॉर्म में वैल्यू दे सकते हैं। पेयर के फॉर्म में जैसे सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया n इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये की और उसकी कोई वैल्यू कुछ भी, तो इस तरह से, एंड यू कैन यूज वन पेयर और यू कैन यूज मोर देन वन पेयर आल्सो। सी, तो इसने इसको डिक्शनरी की तरह रिटर्न करा। इवन यू कैन स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ पेयर। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ और वेरिएबल ले लिया और वहाँ पे हियर आई एम पासिंग सम मोर, तो अब इस बार 2 ले लिए पेयर, तो इन दैट केस आल्सो इट विल वर्क। तो ये जो कन्वेंशन है डबल स्टार, you can use it if you want to get your output in terms of dictionary, right? So, और अगर डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं तो आप अगर इंडिविजुअली वैल्यू के साथ डील करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आई मीन। सपोज अगर मेरे को की और वैल्यूज दोनों को अलग अलग की तरह ट्रीट करना हो, मेरे को इनको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करना है, तो रिटर्न कर ही रहा है, तो ऑलरेडी नो दैट कि सपोज मेरे को की और वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे आपको पता है कि अगर मेरे को दोनों की वैल्यूज को रिट्रीव कराना है और उनको अपने तरीके से डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या कर सकते हो। हाँ जी, एक तो ये, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हटाते नहीं है, उसी में चेंज करते हैं। आपको बताया था ना आइटम्स, अगर मेरे को दोनों की वैल्यू अलग अलग चाहिए तो फॉर 2 वेरिएबल ले लिए मैंने इन, और क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो नाम है ना, पहले यहाँ पे टपल की तरह काम कर रहा था इस सिनेरियो में अगर सिंगल है, लेकिन अगर डबल कर दिया तो ये आपका डिक्शनरी की तरह काम करता है। डिक्शनरी की तरह काम करता है तो वी नो दैट विद डिक्शनरी वी हैव समथिंग लाइक आइटम्स, वैल्यूज, कीज, रिमेंबर। और फिर अब जब मेरे की वैल्यू के में आ जाएंगी और वैल्यूज जो है उस पर स्टोर होंगी, वो वी के अंदर आएंगे। जैसा आपको डील करना है डील करो उनके साथ, जैसा हमें करना है। सपोज मैं सिंपल तरीके से की और वैल्यूज को डिस्प्ले कर देता हूँ विद सम स्पेस, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करते हुए, कुछ ऐसा, और फिर यहाँ पे पी की वैल्यू, तो एक बार वैल्यू आ जाए फिर तुम अपने तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इफ यू लुक आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, तो अगर एक पेयर पास किया यहाँ पे तो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस। कितने भी पेयर आप पास करो, जितने भी आप पास करेंगे, इट विल गिव द आउटपुट अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये भी एक सिनेरियो है, ये आया तो ये भी याद आ गया। तो हियर यू कैन यूज दिस आल्सो अगर डिक्शनरी के वे में काम करना है।
Now with this, we will have look at our PPT. So variable function argument, so deferred argument, keyword, arbitrary variable length argument, we have taken it. उन्हीं के एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पे, वही सब चीज़ें हैं जो भी जस्ट मैंने एक्सप्लेन की है. ये डिफरेंट केसेस जो हमने अपने क्रिएट करके भी देखे अपने सेशन में. कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया. वेरिएबल लेंथ देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे स्टार लगा देने, सो इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यू. यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी वैल्यूज है उनको हेलो के साथ प्रिंट करना है. तो अगर मैंने फंक्शन कॉल किया इफ आई एम पासिंग 4 वैल्यू, तो यहाँ पे इसने दिखा हेलो मोनिका, हेलो ल्यूक, हेलो स्टीव. सपोज अगर मैंने 2 वैल्यू पास की होती, मोनिका ल्यूक, तो इट विल डिस्प्ले हेलो मोनिका, हेलो ल्यूक. इट विल डिस्प्ले लाइक दिस. So this is about this. अब आते हैं एक स्पेशल फंक्शन टाइप पे, रिकर्सन. What is recursion? Yes, what is recursion? Function calling Repetition of itself. itself. When recursive function, क्या होता है recursive? A recursive function is that function which Calling is calling itself. itself. And this process is known as recursion. So calling itself means when I am defining my function, at the time of definition I am calling it also. मतलब मैं function अभी define ही कर रहा हूँ और define करने पे मैंने उसको call भी कर लिया. So when function is calling itself, this particular function is known as recursion. And this process is known as, this function is known as recursive function, and this process is known as recursion. If I take one real-time example of the same, if you will put one object within 2 parallel mirror, और फिर किसी एक मिरर में देखें तो what do you think? How many objects will be displayed? 2 पैरेलल मिरर के बीच में अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे उसमें? इनफाइनाइट. तो एक सीरीज से दिखती चली जाएगी. So why? Because that object is being displayed recursively. It is being reflected in those mirror recursively, right? तो recursion क्या होता है कि when you are using recursion process, तो एक loop start हो जाता है और ये loop चलता ही रहेगा अगर आप इसको control ना करें. तो obviously control करना जरूरी है क्योंकि ये जो infinite वाली जो चीज है infinite loop, इट शुड बी अवॉइडेड. इनफाइनाइट लूप का मतलब आपके सारे रिसोर्सेज केवल एक प्रोसेस के लिए बिजी हो गए, आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनफाइनाइट लूप. सो वी शुड अवॉइड इट. तो व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद रिकर्सन वी शुड बी केयरफुल व्हेनेवर वी आर यूजिंग रिकर्सन कॉन्सेप्ट. सो it can one loop will be started and there must be one condition which will be stopped. एक exit condition जरूर होनी चाहिए when you are working with recursion, और इस exit condition को recursion concept में हम बोलते हैं base condition, right? So recursion क्या है? When function is calling itself. That process is known as recursion. और यहाँ पे recursion है तो exit condition तो एक होनी चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली एक लूप चलना शुरू हो जाता है. और उस एग्जिट कंडीशन को रिकर्सन के टर्म्स में हम बोलते हैं बेस कंडीशन. तो अगर मैं रिकर्सन के थ्रू कोड लिख रहा हूँ, अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो कोई ना कोई बेस कंडीशन जरूर होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी कंडीशन जरूर होनी चाहिए जहाँ पे ये स्टॉप करे. अब एक्चुअली होता है क्या है रिकर्सन में, बैकग्राउंड पे चीजें कैसे चलती हैं. रिकर्सन में क्या होता है बेसिकली, व्हेनेवर योर रिकर्सन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड, वन स्टैक विल बी क्रिएटेड. एक स्टैक बननी शुरू हो जाती है, तो एक स्टैक बननी शुरू होती है एंड इट विल ग्रो, और ये स्टैक बनती चलती जाएगी, ग्रो होती रहेगी. इट विल ग्रो अप टू बेस कंडीशन. अगर आपने कोई बेस कंडीशन दी है तो ये चलती रहेगी, जैसी बेस कंडीशन मिलेगी वहां पे स्टॉप हो जाएगा स्टैक का बनना. इसका ग्रो जो ये ग्रो करती रहेगी कंटिन्यूसली, वो स्टॉप होगा अगर कोई बेस कंडीशन इसको मिलती है. अगर बेस कंडीशन मिलेगी तो बनता ही चला जाएगा. और जैसे इसको बेस कंडीशन मिली उसके बाद स्टैक जो स्ट्रक्चर है क्या फॉलो करती है, किस तरीके से काम करती है, लीफो और फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैक क्या फॉलो करता है? Last in, first out. Then first out. Yes. Stack follows LIFO, last in, first out. Means
तो ये क्या करेगा, जैसे रिकर्सन प्रोसेस स्टार्ट होगा आपकी एक स्टैक बननी शुरू हो जाएगी एंड इट विल ग्रो अप टू बेस कंडीशन। जैसी बेस कंडीशन मिलेगी उसके बाद लिफो मैनर में इट विल रिटर्न द वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होगी वो पहले रिटर्न होगी, फिर उसके नेक्स्ट 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 और फाइनली जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी और इट विल डिस्प्ले। तो बैकग्राउंड पे सो रिकर्सन जब हम यूज कर रहे हैं ना, लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन एंड लॉट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो इसलिए रिकर्सन देयर इज अ ट्रेड ऑफ यूज ऑफ रिकर्सन। बेनिफिट ये है रिकर्सन का कि इट विल सिंप्लीफाई योर कोड, लेकिन इसके थोड़े नुकसान भी है, इसके डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी बिकॉज लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन एट द बैक एंड। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर रिकर्सन के थ्रू किया है कि तो मेरी एफिशिएंसी भी प्रॉपर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी की कीमत पे हम रिकर्सन चला रहे हैं, उससे बेटर है कि अगर मेरा नॉर्मली सही चल रहा है तो वही ठीक है। अगर हमें लगता है रिकर्सन से बेटर हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा कोड क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है रिकर्सन, देन इट इज ओके। तो आई विल टेक वन एग्जांपल जिससे कि ये जो चीजें हमने की और भी क्लियर हो जाए। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, हमेशा दिया भी वही जाता है क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। क्या होता है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर? तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं इसका। फिर विल बी राइटिंग ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। इसको हम बिना रिकर्सन के भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे रिकर्सन का केस ले तो रिकर्सन के थ्रू करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, फैक्टोरियल को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5। क्या होगा फैक्टोरियल ऑफ 5? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 120. 5 into 4 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 1 यहाँ पे बेस कंडीशन होगी एक्चुअली इसकी, यहाँ पे स्टॉप हो गया, राइट? सो अकॉर्डिंगली इट विल गिव द आउटपुट। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n मींस n into n n minus 1 n minus 1 into n minus 2 into n minus 2 up to 1। हाँ, और ये चलता रहेगा आपका up to 1, 3 into 2 into 1 up to 1 it will, right? It is working like this as you see, right? So ये कॉन्सेप्ट है मेरा फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का। अब इसको हम यूज करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, जिसको हम रिकर्सन के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट? सो इफ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ इट, अगर इसको हम कैलकुलेट करने का एक यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखें, so we can move on to our ideally now। so एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं इसकी। so here suppose यहाँ पे मैं एक रिकर्सन कुछ भी नेम दे देते हैं इसको, suppose REC दे देते हैं नेम, और जिसका मेरे को कैलकुलेट करना है num, एंड here यहाँ पे भी बेस कंडीशन का ध्यान रख लेते हैं। तो इफ, तो पहले बेस कंडीशन लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 इफ द वैल्यू ऑफ दिस नम लिया वेरिएबल मैंने, इफ नम इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। नेगेटिव का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, चाहते तो उस कंडीशन को मैनेज कर सकते थे यहाँ पे, बट हम इससे भी काम चल जाएगा। मेन चीज को फोकस करते हैं एल्स, और यहाँ पे चलाएंगे हम रिकर्सन। ये तो बेस कंडीशन को मैनेज किया, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न सी, हियर वी हैव रिटर्न नम इनटू एन एवरी टाइम दिस वैल्यू विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो यहाँ पे क्या भी मैंने फंक्शन डिफाइन ही कर रहा हूँ इस समय, हियर आई एम कॉलिंग इट आल्सो REC, और यहाँ पे हमने कर दिया num minus 1। so see here function is calling itself, तो इसने ये रिकर्सन का फॉर्म ले लेगा यहाँ पे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिकर्सन। तो अब अगर मैं इसको यूज करूं, अगर ये वैल्यू सपोज इसको हम कॉल करें तो यू कैन स्पेसिफाई इफ आई एम यूजिंग इट, तो मैं सपोज प्रिंट मैसेज के थ्रू इसको कर लेते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल नंबर इज, या हम इसका नंबर वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक वेरिएबल से वैल्यू ले लेते हैं, तो कोई भी वेरिएबल ले लिया मैंने n, और यूजर से अगर वैल्यू लेनी है यूजर से भी ले सकते हैं, और न्यूमेरिक लेने तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इंट इनपुट, थोड़ा सा उस तरह मीनिंगफुल वे में प्रिंट करते हैं नंबर
यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ, इसका जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल ऑफ n, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, और यहाँ पे फिर कॉल करते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया REC, और जो वैल्यू आप पास करेंगे उसी का मेरे को फैक्टोरियल चाहिए, राइट, और फिर ये आउटपुट देगा। तो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, इसको सेव कर लेते हैं पहले, तो इसको सेव कर लेते हैं हम recursion .py and storing at our location. Invalid syntax where? Oh, comparison num equals to 1. So it is asking enter a number. Suppose if I enter 5, so it is giving you 120. So it is working fine. But how it is working at the back end actually? So let me show you. उसके लिए मैंने ना यहाँ पे एक वीडियो बनाई है. So let me show you that कि कैसे काम करता है बैकग्राउंड पे। जैसा मैंने बताया, जैसे आपने किया, सी क्या हुआ, जैसे आपने 5 पास किया इसमें, तो विद REC5 इट विल एंटर, यहाँ पे कंडीशन मैच फॉल्स, इट विल कम टू दिस, इट विल टेक 5 इनटू, और यहाँ पे रिकर्सन शुरू होगा। सो रिकर्सन एक रिकर्सिव फंक्शन बना, तो एक लूप स्टार्ट हो जाएगा 5 इंटू REC4, फिर नेक्स्ट 4 के साथ करेगा, फिर से यहाँ पाएगा 5 इंटू 4 इंटू REC3, इस तरह से चलता है कब तक, जब तक कि इसको बेस कंडीशन मिलती है। जैसे ये 1 होगा वहां पे स्टॉप हो जाएगा, और फिर ये लिफो मैनर में वैल्यू को रिटर्न करेगा। हाउ, लेट मी शो यू दैट। तो उसके लिए मैंने एक ये सिंपल छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो इसको लेट मी शो यू कि कैसे काम कर रहा है। तो सी, हम फैक्टोरियल 5 कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन का नेम फैक्टोरियल अंडरस्कोर रिकर्सिव है, हमारे केस में REC नेम दिया है हमने इसको, रिकर्सिव कुछ भी नेम, और 5 का फैक्टोरियल है। तो जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो पहले जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू पास की, so moment you are passing the values to it, तो जैसे आपने 5 पास किया, तो 5 पास करते क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 से इसने एंटर किया, यहाँ पे कंडीशन मैच की, फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये फंक्शन का नेम REC4 इन केस, यहाँ पे फैक्टोरियल रिकर्सिव नेम लिया है। तो जैसे होगा तो एक स्टैक बनना शुरू हो गई 5 इंटू फैक्टोरियल 4, उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, उसके बाद जैसे 1 मिलेगा, 1 मिलते ही ये कंडीशन होगी ट्रू होती है, एंटर रिटर्न 1, तो ये होगी इसकी बेस कंडीशन, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप, तो ये जो स्टैक आपकी बन रही थी ना कंटिन्यूअसली, इट विल बी स्टॉप्ड, और फिर लिफो मैनर में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो पहले आपको वैल्यू मिली है, यही सही से अनवाइंड हो जाएंगे शुरू 1, उसके बाद नेक्स्ट 1/2 दैट इज 2, उसके बाद 2 इंटू 3 दैट इज 6, फिर 6 इंटू 4 दैट इज 24, फिर 24 इंटू 5 दैट इज 120, ये फाइनल वैल्यू है। तो आउटपुट में हमें 120 मिल गया, बट इन द बैकग्राउंड इट इज वर्किंग लाइक दिस, so a lot of processing is going on, right? तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो it is working like this. So factorial 4, 5 into factorial 4, 5 into 4 into factorial 3, 5 into 4 into 3 into factorial 2, 5 into 4 into 3 into 2 into factorial 1. तो if value is 1, it should return 1. तो वहीं पे स्टॉप हो गया, और फिर ये लिफो मैनर में इसने वैल्यू को रिटर्न करना शुरू किया। 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 that is 120. So it is working like this. तो रिकर्सन इस तरीके से काम करता है बैकग्राउंड में। So this is recursion. Okay, यहाँ पे वही एग्जांपल है, तो हम देख चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव टेकन इट। एडवांटेज, तो आपका जो कोड है इट विल लुक क्लीन एंड एलिगेंट, लेकिन इसके साथ इसकी डिमेरिट्स भी है। तो रिकर्सिव कॉल्स आर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम आल्सो, ठीक है ना। सो इसलिए देयर इज अ ट्रेड ऑफ यूजिंग दिस रिकर्सन। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम एफिशिएंसी, ऐसा नहीं हो कि मेरा बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा हो, एफिशिएंसी हमें ना मिल रही हो, अगर ऐसा है तो फिर हम रिकर्सन को अवॉइड करेंगे।
So now come to the next concept, anonymous function. Anonymous function, lambda function. Anonymous function means function without any name. Anonymous function means function without any name. This anonymous function is also known as lambda function in Python programming because we use lambda keyword to define anonymous function. अब इसका यूज क्या होता है, मतलब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं बिना नेम दिए, राइट? तो बेसिकली लैम्डा का काफी यूज होता है और लैम्डा को जनरली हम यूज करते हैं जब हम थोड़ा सा स्मॉलर यूटिलिटी वगैरह को यूज करें उनके लिए हम, और हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी स्मॉलर यूटिलिटी के लिए भी आई विल डिफाइन ए फंक्शन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो अभी तक जो किया फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वहां से कॉल करोगे, राइट? तो स्टोर करके तो रखना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं स्मॉलर यूटिलिटी है तो मेरा टास्क फंक्शन जैसा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है मैंने फंक्शन जैसा कुछ डिफाइन किया, यूज किया और दैट्स इट, खत्म हो गया वहीं पे, राइट? मेरे को अलग से उसको स्टोर करने की जरूरत ना पड़े। So if you want to work in that way, dynamic manner completely, then you can use this lambda. So see the syntax of it. उसका मैं यूज भी दिखाऊंगा अभी कुछ फंक्शंस के साथ आपको। तो lambda का जो syntax है, अभी syntax point of view से ले रहे हैं। lambda का syntax है, you'll use lambda keyword. Here you can pass arguments, you can pass parameter, you can pass 0 or more parameters. अगर more than 2, 0 तो नहीं होगा, एक तो करेंगे कम से कम, और अगर मोर देन 1 है तो दे विल बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग कोमा, आफ्टर दैट कॉलन, और जिस पर्पज के लिए आप कर रहे हैं उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे करोगे, तो ये पैरामीटर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब लैम्डा की खासियत ये है, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैम्डा फंक्शन इज दैट इट विल टेक द वैल्यूज ऑफ योर पैरामीटर, इट विल टेक द आर्गुमेंट फ्रॉम दैट कंटेक्स्ट वेयर इट इज बीइंग यूज्ड। जिस कंटेक्स्ट में आप लैम्डा को यूज करें उसी कंटेक्स्ट से वैल्यू को ले लेता है, क्योंकि हमने अलग से तो डिफाइन नहीं किया डेफ के थ्रू। तो जिस सिनेरियो में आप इसको यूज करते हैं उसी जिस कंटेक्स्ट में आप यूज करते हैं उसी कंटेक्स्ट से वैल्यू को ले लेता है, कैलकुलेट करता है और रिटर्न कर देता है वैल्यू को। सो लेट मी शो यू द यूज ऑफ इट। सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लैम्डा एक पैरामीटर कॉलन उसका एक्सप्रेशन, हम क्या कर रहे हैं इस लैम्डा के थ्रू, वी आर जस्ट टेकिंग डबल ऑफ द इनपुट वैल्यूज जो भी पास कर रहे हैं, राइट? तो मैंने क्या किया, सी इस एक्सप्रेशन को मैंने एक वेरिएबल के अंदर साइन कर दिया, डबल इक्वल्स टू दिस। अब ये डबल जो वेरिएबल है इट विल वर्क एज ए फंक्शन, मेरे को नाम देने की अलग से डेफ करके जरूरत नहीं है। अब यही वेरिएबल फंक्शन बनेगा, उस वेरिएबल को जब फंक्शन की तरह कोई भी वैल्यू पास करेगी तो जिस कंटेक्स्ट में यूज हो वहीं से इसने वैल्यू ले ली 5 एंड आउटपुट विल बी 5 into 2 एज पर द एक्सप्रेशन इट विल गिव यू 10। सो हियर आल्सो यू कैन सी सम मोर, यू कैन पास मोर देन 1 पैरामीटर आल्सो। जैसे मैंने किया लैम्डा 3 पैरामीटर पास किए तो कॉमा से सेपरेट होंगे ये कॉलन, और जिस पर्पज के लिए आप यूज करें। तो मैं क्या चाहता हूं, इस एज पर दिस एक्सप्रेशन आई वांट टू कैलकुलेट। तो जैसे ही आपने इस डेफिनेशन को सेव किया किसी वेरिएबल में, ये वेरिएबल ही फंक्शन बन गया और अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन इट विल गिव द आउटपुट। तो आपने पास किया 4 5 6, तो x की वैल्यू 4 दी है, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 6, तो अकॉर्डिंगली इट विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन एंड व्हाटएवर विल बी द आउटपुट इट इज बीइंग रिटर्न। सेम यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बताया कि इसका थ्राइस ले x का, y का 4, और यहाँ पे दोनों को पेरेंथेसिस के अंदर प्रिंट कर दे, यहाँ पे प्रिंट किया, इस डेफिनेशन सेव किया, जैसी वैल्यू दी तो अकॉर्डिंगली प्रिंट हो गया। यहाँ पे इसका थ्राइस ले लिया, इसका 3 टाइम्स लिया, यहाँ पे इसका 4 टाइम्स लिया, और यहाँ पे तो एज इट इज वैल्यू को प्रिंट किया। तो जैसा आप बताएंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन में अकॉर्डिंगली ये वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये तो है केवल सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका यूज क्या हो सकता है, तो इसके यूज के लिए मैंने यहाँ पे यूज किए हुए 2 फंक्शन, मैप और फिल्टर। तो पहले तो मैप और फिल्टर ये भी बहुत यूज होते हैं पाइथन में, इसलिए मैंने इनको चूज किया है यहाँ पे। तो पहले तो मैप और फिल्टर फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और फिर हम यूज करेंगे लैम्डा को इन मैप और फिल्टर के साथ, वहां पे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस आपको लैम्डा का पता लगेगा। सो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन क्या होता है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो मैपिंग, क्या मीनिंग होता है मैपिंग का? कोई भी चीज अप्लाई, कोई कंडीशन मैप कर दी गई स्टूडेंट्स पे, एम्प्लॉइज पे, सिटीजन्स पे, क्या मतलब होता है मैपिंग का? हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? यस, टेल मी।
मैपिंग मीन्स यू आर अप्लाइंग सम कंडीशन ऑन ऑल। जैसे एक रूल आया कोविड के टाइम पे कि एवरी सिटीजन शुड बी वैक्सीनेटेड, राइट, सबको करना है, तो ये कंडीशन सबके लिए थी कि सब पे अप्लाई कर दिया गया उसको। तो व्हेन यू वांट टू अप्लाई समथिंग ऑन ऑल, दैट थिंग इज नोन एज मैपिंग, ठीक है। एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए आता है कंडीशन कि भाई उनका पे कमीशन आ रहा है, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, जैसे वो होता है तो इट विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी मैप्ड ऑन ऑल द एम्प्लॉयज़, ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, राइट। तो ये हो जाता है। जैसे अनाउंस होता है कि यू विल बी हैविंग योर एग्जामिनेशन ऑन दिस सैटरडे, तो ये कंडीशन सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो गई। सो व्हेनेवर यू वांट टू वर्क, व्हेन यू वांट टू परफॉर्म योर ऑपरेशन लाइक दिस, जहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी, कोई कंडीशन आपको अप्लाई करनी हो, all the values, then you can use map. What I mean here, let me show you that. एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो मैप का यूसेज देखते हैं, तो स्क्रिप्ट बनाते हैं इसकी। तो अगर आप यहाँ पे देखें मैप, इसका इंटेलिजेंस फीचर देखें तो देयर आर 2 पैरामीटर्स, फंक्शन एंड इटरेबल। सो इटरेबल के साथ ये यूज है, इसका मीनिंग अब आपको पता है, मीन्स वी कैन यूज 1 or more than 1 इटरेबल्स। और इटरेबल्स क्या है? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये आपके इटरेबल है, जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है। नंबर इज नॉट इटरेबल क्योंकि एक सिंगल वैल्यू वहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं, बट स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, टपल इट इज आल्सो मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सो ये इटरेबल्स है। सो मैप का क्या होगा कि कोई भी फर्स्ट पैरामीटर शुड बी सम काइंड ऑफ फंक्शन, और फंक्शन की जो भी फंक्शनैलिटी है इट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड इटरेबल। तो सारे इटरेबल्स जो भी लिया होगा सब पे अप्लाई होगी वो कंडीशन। तो 2 चीजें चाहिए, फंक्शन और वो वैल्यूज जिन पे अप्लाई करना है, और वैल्यूज होंगी वो इटरेबल से हम लेंगे। सपोज मेरे को क्या करना है कि सपोज आई एम हैविंग वन लिस्ट, ये इटरेबल है इसलिए लिस्ट ले रहा हूं, और वी आर हैविंग सम वैल्यूज इन दिस। नाउ सपोज आई वांट टू I want to display a list where I want to calculate इनको, I want to display this value as a squared value। हर एक का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अगर हर एक वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करने एक तरीका तो ये था कि आप लूप चला दो, इस पे लूप चला के काम हो जाता हमारा, हर एक वैल्यू को 1 by 1 लिया, स्क्वायर कैलकुलेट किया और उनको डिस्प्ले करते चले गए, राइट। तो वन ऑप्शन इज दैट, जो ट्रेडिशनल अप्रोच हो सकती है इसके लिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक अप्रोच, आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है, उस तरह का एक मैंने असाइनमेंट भी दिया था आपको, लेकिन यहाँ पे मैप के थ्रू करेंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ स्क्वायर। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया अपना, उसको नेम दे दिया मैंने कैलकुलेट स्क्वायर, सपोज वैल्यू जिसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एंड इट शुड रिटर्न द स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम कर सकते हैं एक्सप्रेशन सिंपली एंड एक्सपोनेंट 2, तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें। ये फंक्शन हमने जस्ट डिफाइन किया है। अब इसी फंक्शनैलिटी को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस लिस्ट पे, हर एक का स्क्वायर लेना है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ मैप फंक्शन फॉर दैट। सो सी कैसे करेंगे, मैप, दो पैरामीटर है, पहला फंक्शन, तो फंक्शन में मैंने इस फंक्शन का नेम लिया। और जब आप मैप के साथ फंक्शन का नेम दे रहे हो ना, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। वैसे फंक्शन के साथ हमेशा पैरेंथेसिस करते हैं, बट यहाँ पे जब पैरामीटर की तरफ पास करो मैप में, तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द नेम। एंड आफ्टर दैट इटरेबल को इटरेबल होना चाहिए, मैंने लिया L1। तो क्या होगा, ये जो फंक्शनैलिटी L1 की हर एक वैल्यू पे चलेगी। तो फंक्शनैलिटी क्या है, स्क्वायर लेगी जो भी वैल्यू है, राइट, तो उनका स्क्वायर करते चला जाएगा ये। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, रिजल्ट, एंड वी आर प्रिंटिंग इट। लेकिन क्या होता है कि जो मैप है ना, ये एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब ये एड्रेस दिखाएगा उसका, तो जिसपे वैल्यूज हैं स्टोर्ड। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली करूं तो ये ना आपको केवल एड्रेस दिखाएगा, वैल्यूज नहीं दिखाएगा, स्क्वायर्ड वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसको मैं नेम दे देता हूं मैप एग्जांपल डॉट py, स्टोर करते हैं अपनी लोकेशन पे। तो सी, तो मेरे को अगर वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो उसको किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है वैल्यू को, तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो आउटपुट आया ना उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो अब ये वैल्यू दिखाएगा, वो भी लिस्ट के फॉर्म में। अगर मैं टपल लिखता टपल के फॉर्म में होता, सेट लिखता तो सेट के फॉर्म में होता। तो सी
हियर, तो अभी क्या है कि सबका स्क्वायर कर दिया इसने. सो हियर वी हैव दिस. इवन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस मैप विद अवर बिल्ट इन फंक्शंस आल्सो. ये तो मैंने अपने से फंक्शन डिफाइन किया, ये जो पहला पैरामीटर इसका फंक्शन है, आई कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन आल्सो. नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर दैट आल्सो. तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो कर देता हूँ, दोनों को तो कर देता हूँ कमेंट. अब सपोज मेरे पास एक और लिस्ट है, उसके अंदर कुछ वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है. Suppose now what I want to do, I want to display each and every value of this list in upper case. अभी लोअर केस में, इनको अपर केस में करना है. अब एक अल्टरनेट, एक अप्रोच तो ये होती है कि आप लूप थ्रू करो और सब पे अपर वाला केस चला दो. कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे करूँ तो हम एक काम कर सकते हैं कि मैं एक लिस्ट ले लूँ पहले तो एम्प्टी, और अपर केस करके इसके अंदर स्टोर करूँ. तो मैं क्या करूँ, इस पर लूप चला दूँ फॉर आई इन L2 में है वैल्यू, और मेरे को क्या करना है, जब भी ये वैल्यू आ रही है 1 by 1, तो उनको मेरे को क्या करना है, आई के अंदर वैल्यू आ रही है उसको अपर केस में डिस्प्ले करना है. और हमें पता है एक अपर फंक्शन होता है, जब ये वैल्यूज आ रही स्ट्रिंग, अपर फंक्शन अपर में कन्वर्ट करेगा. और अगर लिस्ट के फॉर्म में दिखानी है आपको, तो आप लिस्ट से एसोसिएट कर दो. तो L3 लिए हुई है मैंने एक्स्ट्रा, L3 डॉट अपेंड, तो उसको पैरामीटर की तरह ले लिया उसमें, तो ये वैल्यू के साथ ऐड होती चली जाएंगी, अपेंड. और फाइनली अगर मैं प्रिंट करूं तो एक लिस्ट L3 यहाँ पे प्रिंट, जिसमें ये अपर केस में वैल्यू आपकी डिस्प्ले होगी. तो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, तो ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, और उसमें भी एक एक्स्ट्रा लिस्ट बनानी पड़ रही है मेरे को. तो आउटपुट तो आ गया मेरा यहाँ पे, लेकिन इसका एक बेटर, एक और बेटर अप्रोच हो सकती है, तो मेरे को अपनी कंसिडर करना. तो मैंने इसको पैरेंथेसिस ये रो स्ट्रिंग की तरह ले लिया, प्रिंट नहीं कराया, तो बस ये डिस्प्ले नहीं होगी आउटपुट में. सो हियर अब मैप के थ्रू भी आप इस टास्क को कर सकते हो. कैसे? और उसके लिए एक्स्ट्रा लिस्ट भी बनाने की आपको जरूरत नहीं है. लिस्ट L2 पे चलाना है हमें, तो आई कैन मेक यूज ऑफ मैप. पहला है फंक्शन, जिस फंक्शनलिटी को अप्लाई करना है आपको किसी भी इटरेटर की वैल्यूज पे. सो हियर मैंने जो बताया कि ये जो हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. और अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग, these are part of one class known as str. तो str क्लास है, तो str क्लास नेम करके डॉट, तो अपर मेरे को चलाना है अपर. तो यहाँ पे फंक्शन चाहिए, तो ये मैंने फंक्शन ले लिया, स्ट्रिंग के अंदर है ये, तो str के अंदर है सब कुछ. तो str डॉट अपर, और मैप में पैरामीटर की तरफ पास करें तो पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है यहाँ पे. और किस पे अप्लाई करना है, L2 पे. तो सी बिल्ट इन को यूज किया मैंने, यहाँ पे तो हमने बनाया था ये, बट यहाँ पे हमने बिल्ट इन को यूज किया और L2 पे अप्लाई कर दिया. और ऑब्वियसली डिस्प्ले कराने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो लिस्ट या टपल, जैसे भी आप करना चाहें. लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, टपल के फॉर्म में चाहिए टपल में कर दो. चलो इस बार टपल में कर लेते हैं. लिस्ट लिखता तो लिस्ट के फॉर्म में आता आउटपुट. और फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू, और कोई एक्स्ट्रा लिस्ट भी नहीं बनानी पड़ी मेरे को, और फिर प्रिंट कर देता आउटपुट. तो ये इसको ही कंसिडर करेगा. यहाँ पे इनको हमने डिफाइन किया, डिस्प्ले नहीं कराया, तो डिस्प्ले यही होगा, प्रिंट यहाँ पे कराया जो कि हमने इस पे चलाया. तो सी इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, तो ये वैल्यू को अपर केस में दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ टपल, क्योंकि टपल में कन्वर्ट किया. लिस्ट का था तो लिस्ट में आता. सो ये भी एक यूज हुआ आपका मैप का. सो इन दिस वे यू कैन मेक यूज ऑफ इट. एंड इवन see, I have already told you that if you want to pass multiple values at the same time, you are using, earlier you have used list comprehension for that. अगर न्यूमेरिक के साथ डील करना है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको बताया था मैंने. हाँ जी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताया. डू यू रिमेंबर कि हमें न्यूमेरिक मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे मैं रिकॉल कर देता हूँ यहाँ पे जिनको नहीं है. कुछ ऐसा हमने किया था कि सपोज L4 एक लिस्ट है, इसमें मेरे को वैल्यू लेनी है यूजर से. आई वांट टू टेक मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द यूजर. तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते थे कि फॉर यूजर से लेनी है वैल्यू, तो कोई वेरिएबल ले लिया मैंने, सपोज x इन यूजर से लेनी है तो इनपुट, और अगर प्रॉम्प्ट कराना है मैसेज से वो भी करा सकते हैं आप. एंटर
वैल्यूज और फिर इस पे लगा देंगे हम स्प्लिट। ऐसे ही छोड़ देते हैं स्प्लिट को, तो स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए वैल्यू। अगर कॉमा सेपरेटेड लेना है तो जिस भी सिंबल के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं तो ये, या मैं कॉमा सेपरेटेड ले लेता हूँ सपोज। तो यहाँ पे आ गई ये वैल्यूज, जो भी आप एंटर करेंगे एक्स के अंदर आएगी, उनको प्रिंट करना है। लेकिन न्यूमेरिक की तरह अगर ट्रीट करना है तो किसी न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट कर लो। इस तरह का हमने किया था टास्क, और उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ इसकी वैल्यू को, प्रिंट L4। तो ये था लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इसी को हम बोलते थे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, कि मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है। एक काम करते हैं, इस प्रिंट को मैं कर लेता हूँ कमेंट, डायरेक्टली इसी को प्रिंट करें, यहाँ पे कंसिडर करें इसको। सो इसलिए उसको कमेंट कर दिया मैंने। तो इट विल कंसिडर दिस, आस्क फॉर द वैल्यू, जो भी वैल्यू एंटर करेंगे तो ये मल्टीपल वैल्यूज आपका लेगा। तो सी तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम पास करें, so it will take that. So see, it is taking these values. Same thing you can do by using map also. इस टास्क को हम मैप के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम करें, अगर मैप के थ्रू करना हो, मैप फंक्शन के थ्रू, तो सी कैसे करेंगे। तो हमें पता है हम मैप के अंदर मैप, यू कैन राइट लाइक दिस, आपने मैप फंक्शन लिया और जिसमें कन्वर्ट करना है, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इंट टाइप। इंट भी एक फंक्शन है, टाइप कास्ट फंक्शन की तरह भी यूज होता है, और जिस पे भी आपको अप्लाई करना है, अप्लाई किस पे करना है, जो वैल्यू आप एंटर करेंगे। तो इटरेटर ये लिस्ट रिटर्न करता है, लिस्ट मेरा इटरेटर है। तो ये जो मैंने किया, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो मैं डायरेक्टली इसी को यहाँ से कॉपी, ये उसका, तो इससे इटरेटर मेरा डिफाइन हो जाएगा, और वो इन टूल पे 1 by 1 अप्लाई होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं फ्लोट में करना चाहता तो फ्लोट लिख सकता था यहाँ पे, तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। इसको क्लोज किया, एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले कराने के लिए मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज लिस्ट के फॉर्म में लेना है तो मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको। और आफ्टर दैट आई एम जस्ट स्टोरिंग इट, किसी भी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लो। सपोज मैं स्टोर कर रहा हूँ किसी भी वेरिएबल में, L4 लिया ना, L5 कर लेते हैं चलो इस बार, और प्रिंट करते हैं। इसको कमेंट कर दे प्रिंट को। Sir, one doubt. हाँ जी बताइए। So when we are using map, can we only use functions which take a single argument, like int and all the ones which we have used so far? They only take a single argument at a time, right? नहीं, ये जो फंक्शन है ना, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन इटरेटर वैल्यूज 1 by 1। इटरेटर इसलिए बोला है कि उनकी वैल्यूज पे 1 by 1 ये आपका काम करता चला जाएगा। ठीक है, ये पहला पैरामीटर कोई फंक्शन होना चाहिए। पहले पैरामीटर का पर्पज है एक्चुअली क्या प्रोसेसिंग हो, किस पे हो, उसके लिए इटरेटर। तो हाँ, इन इटरेटर पे 1 by 1 वो प्रोसेस करेगा, इसलिए तो उनको हमने बोला इटरेट, यू विल इटरेट थ्रू ईच एंड एवरी वैल्यू। आर यू गेटिंग? Yes, sir. But like अगर for मैं यहाँ पे, example, हाँ say if we बताइए। had a list of like 4 numbers, like 1, 2, 3, 4, and in the function over there, if we wanted to use something like add, which would like take the first 2 in the iterable, then the next 2, then the next 2. Is there any way of doing that using map? हाँ कर सकते हैं, फिर आपको अपना एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा, मतलब आपका फंक्शन बनाना पड़ेगा उस तरह का, कैसे काम हो वैल्यूज पे। ये हम किससे बता रहे हैं? Function से। फंक्शन से। तो उस तरह का फंक्शन हम यहाँ पे नेम देंगे, और उसके जो पैरामीटर उनकी पैरामीटर्स की वैल्यू देंगे। और सी मैंने दिखाया था आपको मैप के साथ, जब हम मैप यूज कर रहे हैं ना, अब पैरामीटर अगर मल्टीपल चाहिए जैसा आपके इसमें कह रहे हैं, तो इसीलिए तो सेकंड को क्या बताया गया है? Iterable. इटरेबल। और इटरेबल भी कैसे? वी कैन हैव मोर देन हाँ। 1 इटरेबल आल्सो। वेरिएबल है ये, वेरिएबल लेंथ है, कितने भी ट्रेबल हो सकते हैं, राइट। अभी लूंगा एक एग्जांपल, चलो इसका भी एक मैं लूंगा कि ये जो मल्टीपल वाला जो केस है ना, इस पे भी आए। ठीक है, सो हियर सो ट्राई करते हैं। सो इट इज आस्किंग द वैल्यू, सपोज यही वैल्यू मैंने एंटर कर देता हूँ इसके लिए भी, और आई एम यूजिंग यू आर, ओहो
यस, इसकी वैल्यू मांगा, ठीक है दोबारा कर देते हैं। आर यू गेटिंग? क्यों आया है 2 बार? इसको मैंने कमेंट नहीं किया था, इसके लिए 2 वैल्यू मांगी इसने। तो अब इस पे आया, इस लाइन पे आया, अब इसकी वैल्यूज मांगी गई है, उसको भी कमेंट करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अब इसके थ्रू ये काम है। सो इट इज शोइंग यू दैट, राइट। सो इट इज शोइंग, तो मल्टीपल वैल्यूज आपके एंटर होगी। मैप के थ्रू भी आपने वही टास्क किया जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करें, ये भी एक ऑप्शन है। अब ऐसा भी हो सकता है वी कैन हैव मोर देन वन इटरेटर आल्सो। और किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या है उसके लिए हम अपना कोई फंक्शन हो, या अब फंक्शन के लिए अब देखो यहाँ पे हम करेंगे ना, आई विल शो यू द यूज ऑफ लैम्डा। अब हम अपना एक फंक्शन, या तो हम अपना फंक्शन इस तरह से बना लें, या मैं नहीं चाहता एक अलग से फंक्शन बनाए, मेरे को चाहिए कि मैं क्या कैसे मेरा प्रोसेसिंग हो उसको डिफाइन करूं यहीं पे और अप्लाई कर दूं। तो नाउ आई विल शो द यूज ऑफ लैम्डा विद मैप। तो हमें क्या करना है, सपोज मेरे पास आई एम हैविंग टू, इनको तो पहले कमेंट कर लेते हैं सब, क्योंकि ये तो वैल्यू मांगते रहेंगे अदरवाइज। सपोज आई एम हैविंग, कोई भी इटरेटर है, चलो एक लिस्ट ही ले लेता हूं मैं, एक मैंने लिस्ट लिया और एक टपल ले लिया, दोनों लिस्ट भी हो सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। एक टपल ले लिया हमने, सपोज मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट ऐसे चाहिए कि ये ना आपस में मल्टीप्लाई करें, या आपस में मल्टीप्लाई करें, राइट। और उसके बाद जो आउटपुट मेरे को मिले, 1 का इसके साथ मल्टीपल, 2 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए, और वो लिस्ट के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। तो क्या करेंगे, मैप। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी डिफाइन करना है। पहला पैरामीटर फंक्शन, लेकिन इस बार मैं कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करना चाहता, आई कैन मेक यूज ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा में मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा, तो लैम्डा, और मेरे को चाहिए 2 पैरामीटर, इस केस में तो एक्स वाई, कितने भी पैरामीटर पास कर सकते, कॉलन, और करना क्या है, मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों का। अब इनकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मैंने दी L1। अब देखो 2 इटरेटर L1 T1, एक ही होता तो एक ही इटरेटर काफी था, लेकिन 2 लिया तो 2 इटरेटर ले लिया हमने। तो x को वैल्यू मिलेगी L1 से, y को मिलेगी T1 से, और ऑपरेशन होगा इसके अकॉर्डिंग। तो फंक्शन और इटरेटर्स, वी कैन हैव मोर देन वन इटरेटर आल्सो। और फिर डिस्प्ले करना आउटपुट मेरे को सपोज लिस्ट के फॉर्म में, तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लो इसको, और फाइनली प्रिंट करा दो आउटपुट, राइट। चलो डायरेक्टली प्रिंट ही करा देता हूँ, किसी वेरिएबल बना लेके डायरेक्टली प्रिंट के साथ भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं। तो सी इट विल डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, सी 1 into 2 2, 2 into 3 6, 3 into 4 12, 4 into 5 20। तो जैसा मेरे को करना है, जिस तरीके से ट्रीट करना है, आई कैन मेक द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली, राइट। सो हियर वी कैन मेक यूज ऑफ इट। इसी का एक और एग्जांपल जो मैंने पीपीटी पे लिया है, वी विल हैव अ लुक एट दैट आल्सो, उसको भी देखते हैं थोड़ा। पीपीटी में भी मैंने आई हैव यूज लैम्डा विद दिस मैप। सो इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या करें कि वी आर सपोज हियर आई एम हैविंग वन लिस्ट, वी आर हैविंग सम वैल्यूज। नाउ व्हाट आई वांट टू रिट्रीव ओनली इवन नंबर फ्रॉम दिस। यहाँ पे इवन और नंबर दोनों है, आई वांट टू रिट्रीव ओनली इवन नंबर फ्रॉम दिस, राइट। तो उसके लिए आई कैन मेक यूज ऑफ मैप। तो मैप में हमने बताया कंडीशन के लिए मैंने कोई अलग से डेफ के जो फंक्शन है फंक्शनल नहीं लिया, बिल्ट इन नहीं लिया, अपना फंक्शन बनाया लैम्डा के थ्रू, एनोनिमस फंक्शन। सो वी हैव रिटर्न लैम्डा, एक ही पैरामीटर पास के एक्स। प्रोसेसिंग कैसे हो, इवन नंबर नहीं ले रहे हम, यहाँ पे इवन नंबर नहीं ले रहे। इवन नंबर के लिए तो हमें फिल्टर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम डबल ले रहे हैं सबका। इवन नंबर है तो उसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है यहाँ पे कि x डिविजन बाय 2 शुड बी 0। तो फिर उस पर वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट में किया हुआ है मैंने वो, यहाँ पे तो डबल लिया इसका। सो मैप में हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई की है सब पे, तो सबका डबल कर देगा ये। और ये वाली अप्लाई किस पे की, माई लिस्ट सेकंड पैरामीटर। तो लैम्डा ये जो x है इस पे अप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू इसी कंटेक्स्ट से मिल जाएंगी इसको, एंड इट विल वर्क और डिस्प्ले द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो सी जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इट विल शो यू द डबल ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यू। तो ये भी एक यूसेज है यहाँ पे। पहले एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने लिया हुआ है इसका एक एग्जाम्पल। सो वी हैव दिस आल्सो।
सर एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। जी, अगर वो दोनों इटरेबल्स के साइज डिफरेंट हो तो उसमें क्या होगा? विल इट स्टॉप एट द हाँ शॉर्टर वन? हाँ, सी सपोज यहाँ पे L1 में 4 है और यहाँ पे मेरी कुछ ज्यादा वैल्यू आ गई, तो इन दिस केस अब कैसे होगा? तो इन दिस केस इट विल नॉट गिव यू एरर, ये केवल वहीं तक काम करेगा जहां तक इसकी रिक्वायरमेंट मैच हो रही है। तो आउटपुट वही बना रहेगा, 7 8 को ये इग्नोर कर देगा क्योंकि यही मैच हो रही है, जहां तक मैच होगी वहां तक आउटपुट दिखाएगा। सी, so it यस is सर, showing थैंक 2 6 12 20, so it will work like this in this case। तो ये भी है। So that is map and you have seen the use of lambda also with map, कई तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक और मैं लेता हूं फंक्शन फिल्टर। नेम से ही पता लग रहा है फिल्टर क्या करेगा, क्या होगा फिल्टर क्या करेगा? हाँ जी, फिल्टर क्या मतलब होता है फिल्टर का? यस टेल मी। सर अनवांटेड चीजों को हटा देना। बिल्कुल, कुछ चीजें फिल्टर्ड इन होंगी, कुछ चीजें फिल्टर्ड आउट होंगी, राइट? अनवांटेड चीजों को हटा देना। और कैसे बताएंगे हम कि ये चीज अनवांटेड है एंड ये चीज मेरी वांटेड है? हाउ वी विल बी डिफाइनिंग? सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम क्राइटेरिया ऑफ दैट। कोई फिल्टर क्राइटेरिया होगा, कोई कंडीशन होगी जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि दिस थिंग शुड बी फिल्टर्ड इन एंड दिस थिंग शुड बी फिल्टर्ड आउट, दिस वैल्यू शुड बी फिल्टर्ड इन एंड अदर वैल्यू शुड बी filtered out. So when we are using filter, basically if you look at the intelligence feature of it, तो ये तो स्क्रिप्ट नहीं है तो अलग बना लेते हैं इसकी फिल्टर की स्क्रिप्ट, ये मैप एग्जांपल के नाम से। तो हियर उसको भी सेव कर लेते हैं। इंटेलिजेंस फीचर ऑफ फिल्टर, यहाँ पे भी पहला जो पैरामीटर है फंक्शन है और दूसरा इटरेबल है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है ना, दैट फंक्शन शुड बी ऑफ बूलियन टाइप, क्योंकि फिल्टर क्राइटेरिया है तो उसमें चेक करेंगे कि किसके लिए कंडीशन ट्रू होगी किसके लिए फॉल्स, और फिल्टर में केवल ये उन्हीं वैल्यू को रिटर्न करेगा फॉर विच योर फिल्टर क्राइटेरिया विल होल्ड ट्रू। तो जब मेरे को कहीं पे भी फिल्ट्रेशन जैसा काम करना है, फॉर दैट पर्पज वी कैन मेक यूज ऑफ इट। सो सी सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया हियर रिबले स्कोर्स, राइट? सपोज कुछ स्कोर्स है, कुछ रन बनाए गए, क्रिकेट के एग्जांपल ले लेते हैं। हियर वी हैव स्कोर्स ऑफ सम ऑफ द प्लेयर या स्कोर ऑब्टेन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। सो हियर वी हैव सम वैल्यूज हियर, suppose now what I want to filter out only those values which are more than 70 से जो ज्यादा है उन वैल्यू को मेरे को कंसिडर करना है, बाकी को मेरे को फिल्टर आउट कर देना है, हटा देना है। तो उसके मैं एक फंक्शन बनाया, मैंने उसके लिए एक फंक्शन बनाया। तो फंक्शन चाहिए पहला पैरामीटर, हम अपने से भी फंक्शन बना सकते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया इज स्कोर करके, और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया लगा दूंगा, कोई वेरिएबल लिया और क्राइटेरिया लगाया कि x शुड बी ग्रेटर देन, शुड रिटर्न व्हाट, केवल वो वैल्यू जहां पे x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। तो ये बुलियन टाइप होना चाहिए फिल्टर के साथ। तो ये बुलियन टाइप हुआ क्योंकि ये चेक करेगा कंडीशन को, उस बेसिस पे ट्रू या फॉल्स देगा। तो जिनके लिए ट्रू होगा वही वैल्यू आपके फिल्टर की रिटर्न वैल्यू होंगी, फिल्टर का आउटपुट होंगी। सी कैसे यूज कर सकते हैं फिल्टर? पहला पैरामीटर फंक्शन चाहिए, तो मैंने इसी को जो अपना फंक्शन बनाया उसी को मैं ले लेता हूं और अप्लाई किस पे करना है? इस इटरेबल पे। तो इटरेबल में मैंने एक लिस्ट ली हुई है और ये फिल्टर भी क्या है, इट विल रिटर्न फिल्टर ऑब्जेक्ट। तो ये अगर मैं ऐसे ही प्रिंट करूँ ना आउटपुट, तो ये मेरे को है ना उसका एड्रेस देगा। तो इसको भी किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर लो वैल्यूज को दिखाने के लिए, नहीं तो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा ना कि वैल्यूज। मेरे को वैल्यू चाहिए उस एड्रेस की, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया और डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं वेरिएबल लेके। सपोज मैंने कुछ वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट इक्वल्स टू, फिर प्रिंट करा दिया, डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, दैट इज सेम रिजल्ट। So if I'm executing it now,
इसको नेम दे देते हैं filter example .py. So see, तो अब ये जैसे इस पर उसको आपने अप्लाई किया तो इसको चेक किया, ये कंडीशन अप्लाई होगी 1 by 1. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फिल्टर्ड आउट, फिल्टर्ड आउट, फिल्टर्ड इन, फिल्टर्ड इन, फिल्टर्ड इन, फिल्टर्ड इन. सो इट इज गिविंग यू दैट. सो इट इज वर्किंग लाइक दिस. अच्छा, इसी एग्जांपल में सपोज फंक्शन यही था, फंक्शन यही था. अगर मैं फिल्टर की जगह मैप कर दूं, व्हाट डू यू थिंक? और मैप को मैंने बताया विच विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल. व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट आएगा? फिल्टर की जगह अगर मैप कर दे, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, फंक्शन है और इटरेबल है. व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट आना बूलियन चाहिए? का लिस्ट मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स ऐसे. बिल्कुल. तो ये सब पे एप्लीकेबल होगा और जो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है उस सबको प्रिंट कर देगा. सी, अभी मैंने मैप किया है ना, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं यहाँ पे, सो सी यू आर गेटिंग दिस फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस. हियर यू कैन सी द डिफरेंस आल्सो. वैसे तो नेम में ही डिफरेंस है, बट यहाँ पे आप इसको यहाँ पे अपने इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया है. सो दिस इज वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. अब एक पीपीटी पे भी मैंने लिया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं. Now we will have look at our PPT also. तो यहाँ पे और यहाँ पे here you can see the use of lambda also. फंक्शन है, फंक्शन के लिए हम lambda भी यूज कर सकते हो, तो इस बार lambda यूज किया मैंने. तो here see what I want, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज है ना, आई वांट टू रिट्रीव ओनली इवन नंबर. इवन नंबर रिट्रीव करना है तो वहाँ पे कंडीशन यूज कर सकते हो. तो हमने क्या किया, फिल्टर, पहला पैरामीटर फंक्शन, फंक्शन के लिए मैंने यूज किया लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन. तो लैम्डा एक्स गोज टू दिस एक्स मोड टू इक्वल्स टू 0. तो जहाँ पे भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी केवल, और किस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं सेकंड पैरामीटर इस इटरेबल पे. तो जिनके सो only those values of this list will be returned for which this particular functionality will hold true, right? जिनके लिए भी ट्रू होगा वो रिटर्न करेगा. तो सी, ये वाली कंडीशन पे अप्लाई होती चली जाएगी. एज पर दिस कंडीशन filtered out, filtered out, filtered in, filtered in, filtered in, filtered out, filtered out, filtered in. So you are getting this output. So here you have seen the usage of lambda with filter also. बिना lambda के भी कर सकते हो, lambda का यूज भी कर सकते हैं. तो काफी यूज होता है मैप और फिल्टर के साथ. यहाँ पे भी हमने कुछ यूसेज किए हैं इनके. So this is about this session. So here you have seen what is function, what are the benefits of using function, how can you define your function, what are the ways of defining function as per your requirement, where it is being completed in itself there only, or where in other case it can return value which can be used for some other purpose further. And here you have seen even the different ways of passing parameters. So you can pass your parameter in different ways as per your requirement. In mandatory, here you can specify on in mandatory manner, or you can specify in optional manner. In both way you have idea of both the things. Even you can pass any number of parameter. And after that you have seen the use of this anonymous function also, which is also known as lambda function, because we use lambda keyword here to define the same. And here you have seen the case of two functions, map and filter, and you have seen the usage of lambda also with these functions. So theoretical session के लिए तो इतना ही रखते हैं. Now in the second half I'll give you one exercise which will be based on functions. तो आज की जो exercise होगी वो हमारी functions पे based होगी. और here you have seen the case of recursive function also. Recursion का concept क्या है, कैसे वो काम करता है, background में we have taken that part also. तो उसी exercise में recursion के भी रखेंगे कुछ, जिससे कि आपकी चीजें जो भी हमने ली है और ज़्यादा clear हो जाए. So अभी अगर कोई query है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सेकंड लैब प्रैक्टिस में तो हम डिस्कस करेंगे ही. नो सर, थैंक यू. ठीक है, तो अभी के लिए सेशन क्लोज करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन विद द लैब प्रैक्टिस at 2:30. So now we will meet at 2:30. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir.